can speak to her. Okay. Good morning. Put the mask very. Easy. खुली रखो, खुला रखो, बिचारा द्वार सामने ओम शांति. ओम शांति अमित भाई. ओम शांति दीदी. आप केम छो? बस मजामा, एकदम मजामा. મુંબઈની પરિસ્થિતિ તો ખાસી વિકટ છે હમણાં જે જોઈ રહ્યા છે. અમે લોકો અહીંયા અંધેરી સ્ટેશન સામે એક હોસ્પિટલ ચલાવી રહ્યા છે પાર્લા સેન્ટર થી. તો બધી પૂરી 80% કોવિડ પેશન્ટ છે ને બધું ફૂલ છે. ઓ પરિસ્થિતિ ખરેખર વિકટ છે. બહુ આપણે આ ટાઈમ પર બી આપણે ચર્ચા જે કરી રહ્યા છે ખરેખર આ બધું જે છે હવે માઇન્ડ સ્ટ્રોંગ રાખવાની જ વાત છે અને ઇમ્યુનિટીની વાત છે. બરોબર વાત છે, એકદમ વાત બરોબર છે. કારણ કે આ સમયે તમે નર્સોને, હાઉસ કીપિંગ સ્ટાફને બધાને બેલેન્સ કરીને બધા ડરે, એ લોકોને આપણે એકદમ ઝીલ અને એન્થુઝિયાઝમ આપવું પડે, સેવા માટે સમજાવવું પડે, ત્યારે એ લોકો તૈયાર થાય. દરેકને જીવ તો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે પણ સમજીએ છીએ બરોબર, પણ અમારે ત્યાં આ ડોક્ટરો બહુ સારા છે ને કરી રહ્યા છે, અધરવાઇઝ બહુ ડિફિકલ્ટ છે આ. ના માનીએ છીએ અમે તો આ છેલ્લા 2-2.5 મહિનાથી જે પ્રમાણે અમારું એટલું બધું મોટું નેટવર્ક છે એમાં એન્શ્યોર કરીએ છીએ કે દરેક વસ્તુ દરેક કસ્ટમર સુધી પહોંચી જાય, એટલે એમાં બી અમે લાગેલા છીએ કન્ટિન્યુઅસલી 24/7 અમારે બી સેવાઓ જે પ્રમાણે આપની ચાલુ છે એ રીતે અમારે બી ચાલુ જ રાખી છે. બરાબર છે. તો પણ આપણે લોકોએ બીએમસી સાથે વાત કરી અને ડાયાલિસિસ અમારે ત્યાં રોજના 40 લોકો કરે છે. એ લોકો કે બધું જ આપી દો. અમે કહ્યું કે કેવી રીતે આપીએ, આ પેશન્ટ બિચારા બીજે ક્યાં જશે, મરી જશે. ડાયાલિસિસ વગર બી અહીંયા બિચારા બધી હોસ્પિટલોમાં ફરે, કોઈ લે નહીં ને હાલત થઈ ગઈ છે એ લોકોની. વાત સાચી છે. અમારે બી અહીંયા સ્ટાર્ટિંગના દિવસોમાં તો હવે તો બધું થોડુંક એટલીસ્ટ ઉપરવાળાની કૃપા છે કે અહીંયા આણંદમાં ખાલી ખંભાત રહી ગયું છે કે ત્યાં થોડા ઘણા કેસીસ છે, બાકી હજુ ખેડામાં કેસીસ છે, મહીસાગર ડિસ્ટ્રિક્ટમાં કેસીસ છે. તો અમારા જે આટલું બધું દૂધનું સંકલન થઈ ગયું છે એમાં અમે જોઈએ છે કે કેવી રીતે અમારા જે બધા ડ્રાઈવર ભાઈઓ છે એમના સાથે જે કંડક્ટરો જાય છે દૂધ કલેક્શન માટે, અને ગામડાના અંદર તો આટલા બધા લોકો છે અમારા સાથે જોડાયેલા, એમને એટલું બધું જેમ કે ઉપરવાની કૃપા છે એટલે આપણે આજ દિન સુધી સુરક્ષિત છીએ અને હજુ બી ભગવાનનો આશીર્વાદ છે. પણ આપણને લોકોએ સારો સહયોગ આપ્યો, રોટરી ક્લબે પણ સારો સહયોગ આપ્યો, કારણ કે આ હોસ્પિટલ છે તો પીપી કિટ્સ ને બધું અમે લોકો બધાને સ્ટાફની બહુ જ સેફટી કરી રહ્યા છે. બધું એ લોકો માટે આપણે પૂરું કરી રહ્યા છે પુરુષાર્થ. અને આપણે ફરજમાં અમે બી એ જ વિચાર્યું કે જે પ્રમાણે અમારે તો કેમ કે
ગામના અંદર ડોક્ટરો બી ફરે છે. લગભગ અમારા 200 ડોક્ટરો ગામના અંદર આજની તારીખમાં ફરી રહ્યા છે એનિમલ ટ્રીટમેન્ટ કરવા માટે. એટલે અને એટલા લગભગ અમારા મોર દેન 80 થી 100 ખાલી આપણા ખેડા જિલ્લાના અંદર જ સુપરવાઇઝર ગામના અંદર લોકોને સમજાવવા માટે કે દૂધ કલેક્શન માટે શું શું વસ્તુ કરવી જોઈએ, કેવી રીતે કરવી જોઈએ, એના માટેનું ઓલરેડી બધા લોકો સતત એ જેને કહીએ ને ફ્રન્ટ લાઈનમાં જેમ ડોક્ટરો લડી રહ્યા છે, પોલીસ લડી રહી, અમારી ટીમ આખી એના સાથે લોકોના સંપર્કમાં રહીને એમને સમજાવે છે અને કેવી રીતે દૂધનું સંપાદન કરવું, કેવી રીતે પોતાનું હાઇજીન સાચવવું, કેવી રીતે આપણી ઇમ્યુનિટી વધારે રાખવી, એ બધા જ સંજોગો વર્ષ પરિસ્થિતિમાં અંદર પ્લસ કંડક્ટર અને ડ્રાઈવર જાય છે એમને એટલી ટેન્શન હોય છે, એમને પીપી કિટ આપ્યા છે અમે, એટલે ત્યાં ડોક્ટરોને પીપી કિટ્સ આપી રાખ્યા છે. ઇવન એનિમલ જરૂરી છે, બહુ જરૂરી છે. આવું ઘણું બધું અમે છેલ્લા 2.5 મહિનાથી કન્ટિન્યુઅસલી જે લેટેસ્ટ ડેવલપમેન્ટ દેખાય અમને કે વિશ્વમાં શું ડેવલપમેન્ટ થયું એ તરત જ કેવી રીતે અમલ કરી શકે એના ઉપર જ અમે આજની તારીખમાં કામ કરીએ. સારી વાત છે, બહુ સારી વાત છે. અત્યારના આ જ જરૂરત છે. અને એક ટાઈમ તો એવું આવી ગયું કે અમે દૂધના પૈસા ખેડૂતોને પહોંચતા કર્યા, પણ ખેડૂતો એમ કે સાહેબ અમે લોકોને પૈસા નથી, અમે ખાવાની શું વ્યવસ્થા કરી આપો. એક પરિસ્થિતિ એવી સર્જાઈ એક ટાઈમ જયારે ઇનિશિયલ ડેઝના અંદર. પછી અમે લગભગ 1200 ટન લોટ અને 600 ટન ઓઇલ ખાલી 8 દિવસના અંદર લગભગ 6 લાખ સભાસદો સુધી પહોંચાડ્યું તાત્કાલિક યુદ્ધના ધોરણે. એમાં પ્લાન્ટ ચાલુ રાખીને પ્લાન્ટ અંદર મેન્યુફેક્ચરિંગ કર્યું, લોટ બનાવ્યો 1200 ટન 8 દિવસના અંદર બનાવીને પેકિંગ કરીને અને સભાસદના ઘેર સુધી પહોંચાડ્યું. બહુ સારું કર્યું કહેવાય. એવી રીતે 600 મેટ્રિક ટન ઓઇલ દરેકનું ખાવાનું જે કારણ કે ટ્રાન્સપોર્ટની પણ તકલીફ છે ને, ટ્રાન્સપોર્ટ પણ નથી એટલે આપણે પણ હોસ્પિટલમાં સ્ટાફને ત્યાં જ રાખવો પડે છે. 50-60 નો સ્ટાફ તો ત્યાં જ, નહીતર એ લોકો આવજા તો કોઈ કરી જ નહીં શકે. હા, વાત સાચી છે, વાત સાચી છે. અમે લોકો તો બોમ્બેમાં અમારે જયારે ઇનિશિયલ ડેઝના અંદર પરિસ્થિતિ એવી સર્જાઈ ગઈ કે એક પરિસ્થિતિ એવી થઈ કે જ્યારે લોકડાઉન થયું ત્યારે કોઈ આવ્યું જ નહીં પ્લાન્ટમાં કોન્ટ્રાક્ટના લેબરો, પણ અમૂલના એમ્પ્લોયર્સ સતત ત્યાંના ત્યાં જ હતા. અને બોમ્બેમાં જે અમને યાદ છે 23 નું લોકડાઉન, 24 ની જે દૂધ અમે પહોંચતું કરાયું એ ટોટલ પ્રોસેસિંગ પેકેજિંગ અમારા માણસોએ મેનેજરથી માંડીને એજીએમથી માંડીને વર્કરે જાતે પેક કરીને અને બોમ્બે માર્કેટમાં મોકલ્યો. બીજા કે ત્રીજા દિવસે પછી લોકો આવવા ચાલુ છે, ત્યાં સુધી અમારા જ એમ્પ્લોયર્સ મશીન પર બેસી ગયા અને પેક કરવાનું કરીને, અને જે થોડા ઘણા અમારા ડિસ્પેચના માણસો રાતે અમે ડિસ્પેચ કર્યો. એ દિવસે મને યાદ છે 4.5 થી 5 લાખ લીટર દૂધ અમારા માણસોએ જાતે પેક કરી દીધું વગર કોઈ માણસો, પણ એન્શ્યોર કર્યું કે બોમ્બે માર્કેટમાં દૂધની કોઈ અછત ના થાય. સરસ, સારું કહેવાય, બહુ જ સારું. સમય પર આવી વેલાના સમયે સહયોગ આપવો એ બહુ મોટી વાત છે. અને અમે તો કહીએ છીએ કે જેમ આપણી સંસ્થા જે પ્રમાણે છે એવી રીતે અમૂલ બી એક સેવાની સંસ્થા છે, અને દરેક જણને મતલબ સભાસદથી માંડીને એમ્પ્લોયર્સથી માંડીને અને કસ્ટમર સુધી એમને તકલીફ ના પડે એનું જ આયોજન. આ જોયું હશે કે ભારતના અંદર કદાચ અમૂલ જ એવી હતી કે જે બધું 24 કલાક ચાલુ હતું. જ્યારે આ બધું પરિસ્થિતિ બધા લોકડાઉન અંદર હતા ત્યારે ફક્ત અમૂલ આપણા ઘેર બેઠા ત્યાં સુધી પહોંચી જાય એવી વ્યવસ્થા અમે લોકોએ આયોજન કરી શકીએ. અને લોકોને આ જરૂરી છે ને, દૂધ તો લોકોને જોઈએ જ આજે. એટલે આપણા એટલા કિસાનોની વાત કરીએ તો દરેક જણે દૂધ આપવામાં જરાય પેલું સંકોચ રાખ્યું નથી. સરસ. તમે એકવાર મુંબઈ હવે આ બધું પતે પછી આવો તો આવો પાર્લા. ના, ચોક્કસ. અને આપ બી પધારો. દીદી બી આવી ગયા છે, શિવાની દીદી. ઓમ શાંતિ, ઓમ શાંતિ. એટલે આપ બી આ પાર્લામાં ખેડા જિલ્લાના આ જ્યુસ સ્કીમમાં અમે છીએ, ત્યાં ખેડા જિલ્લાના બધા પટેલ લોકો અમારી પાસે બહુ છે અહીંયા. ના ના, અમારા ખેડા જિલ્લાના પટેલ તો બધા આખા ભારતના અને વિશ્વમાં છે આજની તારીખમાં. તમારે ત્યાં આણંદની બાજુમાં ઉત્તર સંડાના મોહનભાઈ પટેલ અમારે બાજુમાં જ રહે છે. સારું ત્યાં કરે છે બધું, સ્કૂલ ને બધું છે ઉત્તર સંડામાં એમની. હું હમણાં આવેલી થોડા વખત પહેલા, નડિયાદમાં પ્રોગ્રામ હતો. ના ના, આપ નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે બી આવો શિવાની દીદી, આપ બધા આપ ત્યાં ચોક્કસપણે અમારે ત્યાં પધારજો. અને અમને તો ખુશી છે કે આજ અમે બધા આપના સાથે છે અને આપ અમારા સાથે છો. સૌથી જે ક્રુશિયલ ટાઈમ છે જેને કહીએ ત્યારે આપ બધા અમારા સાથે છે, બહુ મોટી વસ્તુ છે દરેક જણ.
અને અમે ઘણા બધા નવા ડેવલપમેન્ટ્સ કર્યા છે, એટલે જ્યારે બી આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ આ બધું ભૂલી જાય ત્યારે આપ શિવાની દીદી અમે જરૂર સજેસ્ટ કરીએ કે આપ ચોક્કસપણે આવો અહીંયા. જરૂર. चालू करे, घड़ी रखने यहाँ सामने डार्क कोड. ओम शांति. आदरणीय ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी, ब्रह्मा कुमारी योगिनी दीदी, अमूल मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अमित सर और अमूल परिवार के सभी सदस्य और इस वेबिनार में अन्य माध्यम से जुड़े हुए सभी का मैं जयेश जोशी अमूल परिवार की ओर से दिल से स्वागत करता हूं. वेबिनार की शुरुआत में हम 5 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना से सेमिनार की शुरुआत करते हैं. पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते.
ओम शांति। ओम शांति। वैसे तो अमूल और ब्रह्मा कुमारी संस्था का काफी गहरा और पुराना नाता रहा है, जो पिछले 30 साल से चला आ रहा है। जब भी हमारी संस्था में मोटिवेशनल ट्रेनिंग सेशन करना हो तो सबसे पहले हमें ब्रह्मा कुमारी संस्था का ख्याल आता है, और उस दौर पर हमने बहुत सारे मोटिवेशनल प्रोग्राम ब्रह्मा कुमारी संस्था के सहयोग से किए। अमूल के कर्मचारियों का जीवन सरल और कार्यक्षम बनाने में इसका काफी सहयोग है। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि अमूल के लगभग सभी सीनियर अधिकारियों ने माउंट आबू में मैनेजमेंट प्रोग्राम अटेंड किए हुए हैं। लेकिन आज का दिन विशेष इसलिए है कि हमें ब्रह्मा कुमारी शिवानी जी से ग्रांट प्राप्त होने जा रहा है। हम पिछले 3 सालों से प्रयास कर रहे थे कि सिस्टर शिवानी जी से रूबरू में ज्ञान प्राप्त करें, और आज बाबा की कृपा से और आनंद सेंटर के ब्रह्मा कुमारी गीता बहन और दीपा बहन के सहयोग से हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं और सारा अमूल परिवार अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने वेबिनार का विषय सेलिंग थ्रू टर्बुलेंट टाइम्स चुना है। आशा करता हूं और संपूर्ण भरोसा भी है कि दीदी का दिया हुआ ज्ञान हमें बिजनेस के संचालन में और अंगत जीवन में लाभदायी होगा। जानकारी के लिए बताएं तो आज हमारे अमूल के जितने भी यूनिट है, गुजरात के 7 यूनिट और गुजरात बाहर के विरार, पूना, पंजाब, कलकत्ता स्थित यूनिटों में हमारे सभी अधिकारी आपसे ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा में कॉन्फ्रेंस रूम में और अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़े गए हैं। हमारे परिवार के सदस्यों भी यूट्यूब के माध्यम से आपको सुनने के लिए आतुर है। मैं ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी का अमूल परिवार की ओर से दिल से अभिवादन करता हूं, और आने वाले समय में जब परिस्थितियां सामान्य होगी तब अमूल परिवार को रूबरू ज्ञान देने के लिए आनंद में आमंत्रित करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं। मुझे बाबा पे पूरा भरोसा है कि वो दिन जरूर और जल्दी आएगा। मैं अभी हमारे एमडी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि अमूल के बारे में थोड़ी जानकारी दें और हमको वेबिनार चालू करने की अनुमति दी। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले हरिजन को सुप्रभात। और अपने जैसे कहते हैं कि बाबा का आशीर्वाद है, माँ की कृपा है, तभी अपन सब मिल सकते हैं, ऐसा तो हम मानते ही हैं। और उस मानने हेतु और उस भावना से जब जुड़े होते हैं तो आज सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शिवानी दीदी का, योगिनी दीदी का और समस्त ब्रह्म कुमारी जो संस्थान है जिसके साथ हम इतने वर्षों से जुड़े हुए हैं। और मैं अपनी बात करूं तो मैं 1998 से 97-98 से मैं जुड़ा हूं, जब मैं पालनपुर में था और हम सबसे पहले प्रोग्राम चालू हुआ था सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का प्रोग्राम, तब मैंने माउंट आबू में अटेंड किया था। और तब से लेके 10 साल वहां रहा। 10 साल फिर हम जब सूरत में थे तो सूरत में तो हमने एक सेंटर बनाया हुआ था, और हमारे सेंटर पे हम डेरी के अंदर ही सेंटर में हर गुरुवार को हम ये ज्ञान की प्राप्ति करते थे, वहां से सेवा का लाभ लेते थे। और जब से यहाँ पिछले 8 सालों से जब मैं यहाँ अमूल में हूँ तो आनंद सेंटर से भी हम जुड़े हुए हैं और आप लोग सबके साथ में जुड़ के, और हमें हमेशा ये ज्ञान प्राप्त होता रहा है। और मैं अगर अमूल की बात करूं तो अमूल की भूमि ही ऐसी है, मैं तो ये कहूंगा त्रिभुवन काका से लेके भुजन साहब से लेके कि जो आज भी इतनी पॉजिटिविटी के साथ में है, क्योंकि उनकी भावना वैसी थी उस समय, और वही भावना आज हमारे परिवार के अंदर जो हमेशा हमें मिलती आ रही है, उस भावना के अनुरूप अगर आप देखें तो ये कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन इतनी जबरदस्त महामारी फैली, उसके बावजूद भी आज अमूल पिछले इतने दिनों से एक भी दिन, अगर मैं कहूंगा एक भी दिन नहीं, एक भी क्षण बंद नहीं हुआ। हर गांव में, चाहे वहां कोविड है चाहे नहीं है, पहले दिन से वहां पे हमने जब ये परिस्थिति उत्पन्न हुई थी उससे पहले से उसकी तैयारी करके गांव में लोगों को समझाया, किसानों को समझाया, सभासद को समझाया कि कैसे मास्क क्या होता है वो पहुंचाया हमने, 6 लाख मास्क 2 दिन के अंदर पहुंचाए, उनको समझाया, बताया कि ये चीज क्या है, और उससे हमने सोशल डिस्टेंसिंग कैसे किया जाना चाहिए, उसके बाद दूध कैसे, अपने हाथ साफ करने कैसे जरूरी है,
मतलब जो चीजें अवेलेबल थी गांव के अंदर, उस चीजों से, जैसे हमने कहा डिसइंफेक्टेंट करना है तो कैसे करेंगे, तो तुरंत हमने ज्ञान दिया। और हमें मतलब हमने तो क्या ज्ञान दिया, ऊपर वाला ही ज्ञान देता है और हम तो निमित्त है, मात्र निमित्त है। तो हमने उनको बोला कि आप जैसे फर्टिलाइजर तो आप स्प्रे करते हो, वैसे आपके पास टैंक हो, उससे डिसइंफेक्टेंट करो। तो हमने उनको यहाँ से सैनिटाइजर भिजवाए। और मतलब गांव में से अगर आप गुजरात के जितने भी, अगर अमूल डेयरी की बात करूं मैं, तो 36 लाख किसान और 18,000 गांव से जो हम जुड़े हुए हैं, वहां पे एक भी क्षण ऐसा नहीं आया कि जहां कोई एक पैनिक सिचुएशन हो गई हो या एक आपदा जैसी आ गई हो, जिससे कोई मन घबरा गया हो कि अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। आगे से आगे हमें ज्ञान की अनुभूति होती रही। जैसे हम कहते हैं ना कि ज्ञान कहाँ से मिलता है, तो अगर अध्यात्म में हम मानते हैं और हमारा पूरा अमूल परिवार इसमें ये भावना के साथ जुड़ा है, तो वो जो ज्ञान था, उस ज्ञान के अनुरूप हमें आगे से आगे ज्ञान मिलता रहा और हम सोचते रहे कि आगे क्या करना है। और उतनी शक्ति परमात्मा ने हमें दी कि हम गांव से उतना दूध, अच्छी गुणवत्ता वाला दूध लेके यहाँ तक ला सके। अगर मैं डेयरी की बात करूँ तो सबसे अच्छी चीज है, आज मेरे सारे परिवार, अमूल परिवार के जो साथी मित्र हैं वो जुड़े हुए हैं, भाई और बहन सब जुड़े हुए हैं यहाँ पे। जैसे आनंद, मोगर, गंजई, खातरज, बॉम्बे, पूना, कलकत्ता, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, पंजाब, सब जगह अभी ये सब हैं। एक भी दिन हमें किसी एम्प्लॉय को ये नहीं कहना पड़ा कि मतलब आप आओगे कि नहीं आओगे, आप आइए, हमने नहीं कहा। हर इंसान, हर एम्प्लॉय अमूल डेयरी का अपनी भावना से, अपना समझ के, और उसे खुद में इतनी शक्ति आई कि वो खुद हमारे कार्य के अंदर साथ में जुड़ा रहा। चाहे फिर वो गांव के अंदर 200 डॉक्टर हो जो रोज सवेरे शाम 300 मतलब 24 घंटे एनिमल के ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज हमारे गांव के अंदर किसानों को समझाने में लगे हुए हैं, चाहे वही एम्प्लॉयज यहाँ पे जो दूध का परिवहन कर रहे हैं, जो ड्राइवर्स हैं, हमारे कंडक्टर्स हैं, वो सारे जुड़े हुए हैं। और उनके साथ में जो हमने फैसिलिटी क्रिएट करके दी उन लोगों के लिए, और उसके बाद जो उनके एम्प्लॉयज हैं, ऐसी परिस्थिति में इतना दूध आना, मतलब और उस दूध को हैंडल करना, उसके प्रोडक्ट बनाना, प्लस उस प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाना, मतलब हर देश और देश के हर कोनों में, हर घर तक पहुंचे, वो सब एक जो कहते हैं कि अमूल का जो ये पूरा जो नेटवर्क रहा है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का अगर आप देखा जाए तो सबसे पाया ही अगर अमूल ही है। और आज इस परिस्थिति में हमने देखा, हम किसी को कटाक्ष नहीं करते, पर अमूल एक संस्था ऐसी रही जो जैसे सेवा की भावना कहते हैं, जैसे ब्रह्म कुमारी जी संस्थान है, वैसे ही सेवा के भाव से अमूल ने ये कार्य को सिद्ध करके दिखाया है। और इसमें आप हमारे सब एम्प्लॉयज का खूब साथ सहकार रहा है, उसके लिए मैं खूब हर एक को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज का जो विषय है, जो हमने बोला है सेलिंग थ्रू टर्बुलेंट टाइम्स, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज क्या है, जैसे बोलते हैं कि हम सबको यही बताते हैं कि जैसे इंसान खाना खाता है, खाना खा के जो एनर्जी रहती है, वो एनर्जी थोड़ी देर बाद क्षीण हो जाती है, फिर भूख लग जाती है, फिर आप खाना खाते हो। वैसे ही प्लेन उड़ता है, प्लेन उड़ने के बाद उसमें फ्यूल खत्म होता है, फिर रिफ्यूल करना पड़ता है। तो इस परिस्थिति में जितनी शक्ति हमारे पास परमात्मा ने दी थी, वो परमात्मा की शक्ति को वापस अगर हम रिवाइव करना चाहते हैं, तो आज शिवानी दीदी हमारे साथ में है, योगी दीदी हमारे साथ में है, तो हमारे सब जो जितने भी मेरे साथी मित्र यहाँ जुड़े हुए हैं, उन सबको रिफ्यूलिंग करने की बहुत जरूरत है। तो इसलिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा होके और इस वेबिनार के थ्रू, यही माध्यम रहा है अभी तक का, जो भी कम्युनिकेशन का माध्यम रहा है। पहले तो हम आपस में मिलते थे और बात करते थे, पर इस माध्यम के थ्रू भी हम आज इस वेबिनार को हम सफल बनाना चाहते हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि सफल होगा ही, है ही। और इसमें सबसे अच्छी चीज ये है पूरे इसमें कि सब जन इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, कि कोई बोल रहा है विटामिन सी लो, कोई बोल रहा है कि आप काढ़ा पियो, ठीक है, वो सब कर रहे हैं, पर सबसे ज्यादा अगर इम्यूनिटी के जो हम सोच रहे हैं, वो ये है कि हमारा माइंड कैसे स्थिर रहे, हम इस टर्बुलेंट टाइम में हमारा बिजनेस को, प्लस हमारे मन को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, और हमारे पूरे जो हमसे जुड़े हैं उन सबको, और अपने पास वालों को कैसे और ज्यादा मोटिवेट करके और बिजनेस को आगे बढ़ाएं, प्लस अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। तो इस माध्यम इस कारणवश आज ये सेलिंग थ्रू टर्बुलेंट टाइम्स का जो हमने आज वेबिनार रखा है, इसके लिए मैं शिवानी दीदी का बहुत बहुत सहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और योगिनी दीदी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और तमाम प्रमुख संस्थान का भी देना चाहता हूँ। और तुरंत ही हम आपको एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि जब ये परिस्थिति पूर्ण रूप से सब अच्छा हो जाए, तो आप जरूर आनंद पधारिए। हम यही कहते हैं, आनंद में आनंद ही आनंद है। और आप जब
यहाँ आएंगे और आपका जो आपका ज्ञान है, मैं बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ आपके हर उसको सुनता हूँ, तो उससे और भी ज्यादा जब प्रत्यक्ष रूप से अपना ज्ञान का आदान प्रदान होगा, वो हम उस वक्त का हम जरूर राह देखेंगे। तो वंस अगेन आपका खूब खूब धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। इस वेबिनार में जुड़े सभी लोगों को ब्रह्मा कुमारी योगिनी दीदी के बारे में छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। बीके योगिनी, who is a graduate in arts with philosophy from Bombay University, followed the path of serving people because of a deep inclination towards spirituality right from childhood, and now she has completed over 45 years of dedicated spiritual services. Even at her young age, she participated in several programs across India. Initially started with one center in Parle. Now she manages more than 22 branches. She is a determined and well-disciplined कर्म योगी। और मैं अभी योगिनी दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना ज्ञान दे। योगिनी दीदी। ओम शांति। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे अमूल डेयरी ने आज इस चुनौती भरे समय में इस महत्वपूर्ण वेबिनार का आयोजन किया हुआ है। और मैं समझती हूँ, जैसे आपने बताया कि पूरा अमूल डेयरी परिवार जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है आज। मैं तो कहेंगी, जैसे अभी हमारे भाई ने सुनाया कि आनंद में आनंद ही आनंद है, ऐसे मैं कहेंगी कि नाम ही है अमूल डेयरी, जिसका एक अमूल्य योगदान जो है वो हमारे समाज और पूरे देश को आज मिल रहा है। हम कहते हैं कि देखिए, व्यक्ति से ही परिवार बनता है, अनेक परिवार से गांव बनता है, अनेक गांव से एक शहर बनता है, अनेक शहर से देश, और देश से मैं कहेंगी कि विश्व बनता है। तो आज हमारे अमूल डेयरी ने एक एक व्यक्ति से लेकर के गांव गांव को आपस में, अभी मैं सुन रही थी, अच्छा लगा कि गांव गांव को उन्होंने जोड़ा है, और जिसके कारण अनेक परिवारों की आज पालना हो रही है, और जिससे देश की भी मैं कहेगी समृद्धि बढ़ ही रही है। और मैं तो ये देख रही हूँ कि अमूल डेयरी की, मैं भी जब माउंट आबू से बाय कार आती हूँ, बीच में अमूल डेयरी बड़ी एक जो है सागर डेयरी, और सामने वहां मैं देखती हूँ रास्ते में अमूल डेयरी का भी आता है। तो हम ये देखती हूँ कि अमूल डेयरी की हर एक प्रोडक्ट जो होती है वो बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबको बहुत बहुत पसंद आती है, और साथ साथ हेल्थ के साथ साथ हैप्पीनेस का भी अनुभव करते हैं। तो कहा जाता है कि खुशी जैसा कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो आज सभी अमूल डेयरी परिवार अनेक आत्माओं की दुआओं के पात्र है। मैं कहेंगी कि आप सभी का ऐसे समय पर आपने सबको सब कुछ पहुंचाया है, जो बेसिक नीड है दूध पहुंचाया है, अभी सुन रही थी मैं। तो आप सब दुआओं के पात्र हो। आप लोगों का पुण्य का खाता जो है वो बहुत जमा है। और मुझे ये याद आ रहा है कि 1995 में हमने एक बिजनेस इंडस्ट्री विंग की ओर से राजकोट से मुंबई कार यात्रा का आयोजन किया था, और उसमें काफी इंडस्ट्रीज जो रास्ते में आई वहां प्रोग्राम किए थे। उसमें आनंद में भी अमूल डेयरी में सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर प्रोग्राम किया। बाद में हम सभी यात्री, कार यात्रियों को उन्होंने पूरी डेयरी हमें दिखाई,
बाद में जब हमारा एमडी से मिलना हुआ तो उन्होंने कहा कि दीदी आप लोग बाद में भी यहाँ सेल्फ मैनेजमेंट के जो प्रोग्राम है वो चालू रखना। और मैं कहेंगी कि 1995 से आज तक, जैसे आप भाई ने बताया, हमारी बहनें समय प्रति समय आनंद डेयरी में प्रोग्राम करने आती है। तो बताया आपने, ऐसे हमारा आपसे बहुत बहुत पुराना नाता है। और मैं कहेंगी कि आज हम सब ये जानते हैं कि पूरा विश्व में कोरोना रूपी महामारी समस्या हमारे सामने खड़ी है। और जैसे आपने बताया कि आज का जो विषय रखा है प्रैक्टिकल है कि सेलिंग थ्रू टर्बुलेंट टाइम, कठिन परिस्थितियों को पार करना है। और आज हम सब ये अनुभव कर रहे हैं कि समय कितना तेज गति से परिवर्तन हो रहा है। ऐसे समय में हम लोगों को अलर्ट रहना ही पड़ता है और साथ साथ में कठिन परिस्थितियों का सामना करने की हमें आवश्यकता जो है वो रहती ही है। मुझे एक इंसिडेंट घटना याद आ रही है कि एक बार मैंने पेपर में ये आर्टिकल पढ़ा था कि एक बार उद्योगपति धीरूभाई अंबानी जी अपनी कोई मीटिंग अटेंड करने जा रहे थे और रास्ते में प्रकृति की ओर से भयंकर तूफान आ गया। तो ड्राइवर ने पूछा कि अब हम क्या करें? तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, कार जो है वो आप चलाते ही रहो। तूफान में कार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उसने वापस पूछा कि अब मैं क्या करूं? ड्राइवर ने वापस पूछा तो अंबानी जी ने जवाब दिया कि नहीं, तुम कार जो है वो चलाते ही रहो। थोड़ा आगे जाने के बाद देखा कि बहुत वाहन जो थे वो रुके हुए थे रास्ते में, इसलिए ड्राइवर को भी थोड़ा कार चलाना मुश्किल हो रहा था। तो उसने पूछा अभी मैं क्या करूं, कार रोकूं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप जो है ना कार चलाते चलो, धीरे धीरे हम आगे निकलते जाएंगे। और ड्राइवर ने फिर थोड़ा समय के बाद आगे निकले तो देखा कि उसको साफ क्लीन दिखाई पड़ा। और थोड़े किलोमीटर आगे जाने के बाद तूफान थम गया और सूरज बाहर आ गया। तो अंबानी जी ने कहा कि अभी कार तुम खड़ी कर सकता है और तुम नीचे उतर सकता है गाड़ी से। तो ड्राइवर ने कहा अभी मैं क्यों ऐसे उतरूं? तो कहा देखो, तुम बाहर निकलेगा तुम्हें पता पड़ेगा कि जो लोग रास्ते में रुक गए, खड़े रह गए, वो अभी भी तूफान में फंसे हुए हैं। पर तू कार चलाता रहा, तूने अपना प्रयत्न चालू रखा, तो आज तू बाहर निकल गया। तो कैसी भी प्रकृति की ओर से चाहे कठिन परिस्थिति आई, परंतु उन्होंने अपनी मंजिल को नहीं छोड़ा। तो मैं यही कहेंगी कि आज भी हमारे सामने ये सब हम जानते हैं कि परिस्थिति, सिचुएशन ऐसी आई है, लेकिन व्यक्ति को हमेशा हिम्मत, जिसको हम कहते हैं, वो हिम्मत कभी भी हारनी नहीं चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि पहाड़ से निकली हुई नदी ने आज तक किसी को रास्ते में ये नहीं पूछा है कि अरे भाई समुद्र कितना दूर है, नहीं, वो मंजिल तक पहुंचती है। तो आप सभी ने भी ये जीवन में, जो भी हमारे अमूल डेयरी का बहुत बड़ा परिवार है, तो उसमें आप सब ने भी ये अनुभव किया होगा कि कैसे हम लोगों ने शुरू किया कार्य को और धीरे 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 मुश्किलों को पार करते 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 कैसे आज आगे बढ़ गए। अनुभव में पूछेगी आप सब पार्टिसिपेंट्स को तो जरूर कहीं उसमें से होंगे
जो हमको बताएंगे अरे हम कुछ भी नहीं था, हमने ये चालू किया दूध का कार्य और आज हम कहां से कहां तक पहुंच गए हैं। ठीक है, परिस्थितियों का चैलेंजेस तो जो होती है वो उनका सामना तो हमें जरूर करना ही पड़ता है, क्योंकि संसार में आज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके सामने चैलेंजेस नहीं आई हो, और ऐसी कोई भी चैलेंजेस नहीं है कि जिसका हमें सामना हम नहीं कर सके। देखिए, व्यक्ति जब कमजोर उनका मन होता है तो परिस्थितियां जो है वो एक समस्या बन जाती है। मन जब स्थिर होता है तो परिस्थितियां जो है वो चैलेंजेस बन जाती है, और मन जब मजबूत होता है तो ये चैलेंजेस जो है वो अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो मैं तो यही कहेंगी कि जब हम अपने मन को शांति में रखते हैं ऐसे समय पर, और मन हलचल में ऊपर नीचे अवस्था नहीं होती है, परिस्थिति कैसी भी हो, हम अपनी स्थिति को, मन की स्थिति को बनाए रखते हैं तो हमारे अंदर धैर्यता आ जाती है और हम कोई भी परिस्थिति से घबराते नहीं है और हिम्मत से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो, हमारी जो बिजनेस इंडस्ट्री विंग की चेयरपर्सन दादी हृदय मोहिनी जी है, वो हमेशा हमको कहती है कि समस्या का समाधान करना है, समस्या स्वरूप जो है वो हमें नहीं बनना है। तो जीवन में सुख और शांति पाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर आध्यात्मिकता का विकास करना बहुत बहुत जरूरी है, और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के साथ साथ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो मैं कहती हूँ हमेशा कि आई फॉर इंट्रोवर्टनेस, अंतर्मुखता। जीवन में जब हमारे अंदर अंतर्मुखता आ जाती है तो हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाती है। जब एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाती है तो हमारी काम करने की, कार्य करने की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है, और जब कार्य क्षमता हमारी बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ता है और उसमें आपको भी लाभ, देश को भी लाभ हो जाता है। उसी तरह एन फॉर नोबल बिहेवियर, डी फॉर डिविनिटी, दिव्यता हमारे अंदर, जैसे धैर्यता, अंतर्मुखता, सहनशीलता, गंभीरता, हर्षित मुक्ता, ऐसे कई दिव्य गुण है जो हमें जीवन में धारण करते जाना है। यू फॉर यूनिटी, संगठन। देखो आप, अमूल डेयरी एक बहुत बड़ा संगठन है। आपकी सफलता होने का कारण है कि संगठन की शक्ति आप लोगों के पास है, जिससे आपको सफलता इतनी मिल रही है। तो यूनिटी, संगठन की शक्ति बहुत जरूरी है। एस फॉर स्वीटनेस, टी फॉर ट्रस्टीशिप की भावना, जिस भावना से ही आप पूरी अमूल डेयरी प्रैक्टिकल में चला रहे हो। और आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य और अधिकार का, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का बहुत बैलेंस रखना जरूरी है। और वाई फॉर योगा, योग जो है, देखो उद्योग के अंदर योग शब्द जो है वो समाया हुआ है। योग बिगर उद्योग भी अधूरा ही हो जाता है। तो मैं यही कहेगी कि योग एक शक्ति है, जितना आप करते जाएंगे आपके अंदर और शक्तियों की प्राप्ति होती जाएगी, और कैसी भी कठिन परिस्थिति को आप पार कर ही सकेंगे। मैं तो यही कहूंगी अंत में कि कठिनाइयों को भी
ये जान लेने दो कि आप इससे ज्यादा कठिन हो। तो अभी इस पर हमारी शिवानी बहन इस विषय पर आज प्रकाश डालेगी। हमारी शिवानी बहन जो है वो हमारी दादी जी हमेशा कहती है कि वो गिफ्टेड सोल है। कैसे लोगों के डे टू डे के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से शिवानी बहन बताती है। तो आप लोग भी सब उनका इंतजार कर रहे हैं। हमारी शिवानी बहन अभी प्रकाश डालेगी। ओम शांति। धन्यवाद। योगिनी दीदी का धन्यवाद करते हुए मैं जितने भी पार्टिसिपेंट है, वैसे शिवानी दीदी के बारे में तो जानते हैं, लेकिन मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं शिवानी दीदी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। डीके शिवानी is practitioner of Raj Yoga meditation of the Brahma Kumaris for over 22 years. Her practical application of spiritual principles on the TV program Awakening with Brahma Kumaris for over 12 years has empowered people to overcome issues of emotional distress, depression, and relationship conflicts. In March 2019, she was awarded the prestigious Nari Shakti Puraskar, the highest civilian honor of women in India, for her role in transforming human behaviors. She has been appointed as Goodwill Ambassador by the World Psychiatrist Association. She is a gold medalist in electronics engineering from Pune University. अभी मैं शिवानी दीदी को विनती करूंगा कि वो अपना ज्ञान का प्रकाश अमूल पे पात्र। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इतना अच्छा लग रहा था सुन के जब भाई साहब बता रहे थे कि कैसे ऐसी परिस्थितियों में भी अपना उमंग उत्साह रखकर, और जो दीदी ने अभी बताया ना संगठन की शक्ति, तो जब पूरा संगठन विच मीन्स एवरीबडी इन्वॉल्व्ड जब एक मत होते हैं, अगर किसी में उमंग है, दूसरे में डर है, तीसरे में डाउट है, तो संगठन की शक्ति नहीं बनती। तो इसीलिए दीदी ने जो बताया बहुत पावरफुल लाइन कि जब संगठन की शक्ति होती है, यूनिटी होती है, तो परमात्मा कहते हैं जहां यूनिटी है वहां सतयुग आ जाएगा। वहां सतयुग है क्योंकि यूनिटी है, और सतयुग मतलब एक होता है, सभी एक मत होते हैं, एक सोच है, एक इंटेंशन है। तो आप सबने पिछले कुछ महीनों में अपने डर को पीछे रखकर, अपने और अपने परिवार के बारे में न सोचकर, एक क्षण भी नहीं आपने बंद किया, तो पूरी संस्थान ने और हर एक ने जिसने किया, अनगिनत दुआएं कमाई हैं। इतनी दुआएं कि वो सिर्फ कुछ महीने नहीं, अब वो पूरे जीवन के लिए स्टॉक में जमा हो गई है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं जब मुश्किल समय पर या जब जरूरत के समय पर कोई सहयोग देता है, तो उस सहयोग देने वाले को तो परमात्मा भी बंधायमान हो जाता है सहयोग देने के लिए, क्योंकि मुश्किल के समय में सहयोग दिया है। तो जैसे डॉक्टर्स और बाकी सब ने अपने बारे में न सोचकर आगे रहे, ऐसे आप सब ने भी किया है। तो पूरे देश की तरफ से आप सबको कितनी कितनी दुआएं मिल रही हैं और मिलती ही रहेंगी, क्योंकि कई ऐसे शहर थे जिसमें कुछ समय तो सब्जी और फल भी नहीं मिल रहा था, तो वो लोग सिर्फ दो ही चीज पर चल रहे थे, दूध और दही, क्योंकि सब्जी फल भी लेने नहीं जा सक रहे थे, सब्जी फल मिल नहीं रहा था। गुजरात में अहमदाबाद में भी ऐसा हुआ था कुछ दिनों के लिए। तो दूध और दही वो एक चीज है जो बंद नहीं हुई। तो कितनी दुआएं, एक अगर हम सीन सामने लाएं कि हर एक जब उसको मुख में डाल रहा होगा तो आपका कितना कितना शुक्रिया कर रहा होगा, भगवान का शुक्रिया करता होगा वो चीज भेजने के लिए, और आपका शुक्रिया करता होगा। तो दुख में लोगों को सुख दिया है, मुश्किल में लोगों को सुकून दिया है, और उनको सेहत दी है इतनी अच्छी चीज देकर। तो जीवन भर के लिए कितनी कितनी दुआएं जमा हो जाती हैं। अमित जी, जैसे आपने बताया ना कि आपने सबको पहले दिन से सिखाया कि मास्क क्या था वो भी उनको नहीं पता गांव में, तो उन सबको पहले दिन से सिखा दिया कि कैसे अपना ध्यान रखना है। और इसीलिए जिसको पहले दिन से ही सिखा दो
तो वो एक सिस्टम, एक प्रोसेस बन जाता है और वो बहुत अच्छे से वो सब करते हैं। अब हमें साथ साथ उनको एक छोटी सी बात और सिखानी है। वैसे गांव में तो मुझे ऐसा लगता है हम इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। शहरों में हमारे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा आती है क्योंकि हम सब तरह से मीडिया और सोशल मीडिया से कनेक्टेड बहुत ज्यादा हैं और हम लोग फोन पे बहुत बार क्लिक 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 देखते बहुत ज्यादा रहते हैं। तो जब बहुत ज्यादा अंदर जाता है तभी थोड़ा सा डर या चिंता लोगों के मन में आती है। तो गांव में तो और भी आपको इजी लगता होगा उनको प्रेरित करना क्योंकि इमोशनली स्ट्रॉन्गर भी होते हैं। लेकिन फिर भी आने वाले समय के लिए हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हमें शरीर की प्रोटेक्शन के साथ साथ मन की प्रोटेक्शन का बहुत ध्यान रखना है, बहुत बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि हमारा मन ठीक है लेकिन आसपास के जो वाइब्रेशंस होते हैं ना वो थोड़े से डाउन हो रहे हैं। आप सब तो पहले दिन से ही सेवा पर थे इसलिए आपको वो वाली चिंता तो नहीं है, लेकिन आपको पता है पूरे देश में कितनी चिंता है उस बात को लेकर। तो पहले था वायरस का डर, फिर दूसरा आया लॉकडाउन। तो लॉकडाउन में भी बहुतों के लिए इजी नहीं था, 24 घंटे छोटे छोटे घरों में इकट्ठे रहना, बच्चों को संभालना, तो उसका भी कई लोगों के मन पर असर पड़ा। और फिर तीसरा था इनसिक्योरिटी, अपने जॉब, सैलरी और बिजनेस की। तो 3 चीजें देश में लोगों के पास बहुत जल्दी जल्दी आई है। इतनी शक्ति सब मन में नहीं थी कि इतनी सारी बातों को सामना कर पाए। और ऐसा अभी भी नहीं कि सल्यूशन आ गया है, तो मतलब कुछ और महीने भी शायद यही स्थिति मन की रहेगी। तो उसकी वजह से डिप्रेशन बढ़ा थोड़ा सा, एंजाइटी अटैक्स बढ़े, लेकिन सबसे ज्यादा चीज जो बढ़ी वो थी इमोशनल डिस्टर्बेंस। तो डिप्रेशन और एंजाइटी अटैक को हम मेंटल हेल्थ इशू कहते हैं। जो भी के इंडियन साइकाइट्रिक एसोसिएशन ने बताया कि पिछले 1 महीने में बहुत स्टीप राइज हुआ है डिप्रेशन और एंजाइटी अटैक में। डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत स्टीप राइज हुआ है, घर में हिंसा के हादसे हुए, बच्चों पर भी हुआ। तो ये सब चीजें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि लोग अपने मन का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो हमें एज अ संस्थान लोगों को उनके मन का ध्यान रखना भी सिखाना होगा। और आप तो ये पहले से ही कर रहे थे इतने सालों से, लेकिन इस समय वो जिम्मेवारी थोड़ी सी और बढ़ जाती है। लेकिन मेंटल हेल्थ इशू जो है वो तो थोड़ा होता है, 20% राइज हुआ है। लेकिन इमोशनल हेल्थ इशू मतलब लोगों के अंदर थोड़ा सा गुस्सा बढ़ जाना, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, सहन करने की शक्ति घट जाना, बिना कोई रीजन के कुछ लोगों को ऐसे ही रोना आ रहा है और वो उनको समझ में भी नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तो ये रीजन ये है कि जो ये बैटरी है, आत्मा को अगर हम एक बैटरी की तरह देखें तो ये बैटरी जब थोड़ी सी कम हो जाती है तो हमारे इमोशनल डिस्टर्बेंसेस बढ़ जाते हैं। और वैसे भी कोविड से पहले भी मेजॉरिटी लोग अपने मन का ध्यान रख नहीं रहे थे। किसी को भी कहो कि मेडिटेशन करो, थोड़ा सा ज्ञान स्टडी करो, तो सबके पास देश में एक ही आंसर हुआ करता था कि हमारे पास तो मरने की भी फुर्सत नहीं है, 1 घंटा कहाँ से अपने लिए निकालेंगे। तो हम पहले भी अपने मन का ध्यान थोड़ा रख नहीं रहे थे और फिर ये परिस्थिति आ गई तो वो मन पर प्रभाव पड़ा है। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं जिसमें जो आपके साथ ऑफिस में है उनका मन का ध्यान, एंड फिर बाकी पूरा संगठन जो आपके साथ जुड़ा हुआ है उनके मन का ध्यान, क्योंकि अभी ये 2-3 महीने और डर बना रहेगा। और अब जब दुनिया बाहर आएगी, देश स्पेशली जब बाहर आएगा लॉकडाउन से, तो वो डर थोड़ा और बढ़ेगा क्योंकि हम संपर्क में आएंगे ना लोगों के, तो लोगों के माइंड में थॉट चलती जा रही है, इसको तो नहीं है, इधर खड़ा रहूं कि नहीं। ये ध्यान रखना एक बात थी, डर कर ध्यान रखना उससे प्रॉब्लम आई है। इसीलिए सरकार ने पहले दिन से मीडिया में जो लाइन आई थी, इट वाज टेक केयर डोंट पैनिक। तो हमने टेक केयर करना सीख लिया, लेकिन हमने कहा पैनिक कैसे नहीं करेंगे, पैनिक तो होना ही है, बात इतनी बड़ी है। तो इसलिए मन का ध्यान रखना शुरू करते हैं, एक छोटा सा अभ्यास करना शुरू करते हैं कि जीवन की बाकी सारी बातों में भी
मतलब एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, राय अलग अलग होगी, ओपिनियन अलग अलग होंगे, छोटी छोटी बातें तो आ ही जाती हैं। कभी कोई रिएक्ट कर देता है, कभी कुछ ऐसा कोई कह देता है जो हमें बुरा लगता है, कभी हम बहुत अच्छा आइडिया देते हैं लेकिन हमारी बात स्वीकार नहीं होती है, तो मन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें तो काम करते समय आती हैं और घर में भी आती हैं। तो हमें एक छोटा सा अभ्यास जो करना है कि हमारे मन की स्थिति परिस्थिति पर डिपेंडेंट नहीं है, और ये सच है। लेकिन बहुत समय से हम ऐसी जीवन जी रहे थे जिसमें हम अपनी मन की स्थिति का ब्लेम परिस्थिति पर डालते थे। जस्ट चेक करना, जब भी कुछ तनाव हो, टेंशन हो, तो कोई पूछे क्यों टेंशन है, तो हम कहेंगे ये वाली बात की वजह से। कोई पूछे क्यों आप नाराज क्यों, कहेंगे इसने ऐसा किया। कोई पूछेगा आपका मन उदास है आज, कहेंगे हाँ उन्होंने इस तरह से बात की। तो व्हाट वी वर डूइंग एवरी टाइम, यहाँ जो चल रहा था उसका ब्लेम हम परिस्थिति और लोगों पर डाल रहे थे। ये एक बहुत सिंपल चीज है, लेकिन ऐसा करने की वजह से ये जो बैटरी है आत्मा की शक्ति, ये घटती जाती है। क्योंकि हम कह रहे हैं कि मेरा मन, मेरे डिसीजंस, मेरा कर्म, मेरा व्यवहार मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये तो परिस्थिति और लोगों की वजह से है। तो हम अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल लोगों को और सिचुएशंस को दे देते हैं ऐसा बोलने से, और फिर हम अपने मन को रिएक्ट करने की परमिशन दे देते हैं कि बात ही ऐसी थी, गुस्सा तो आना ही था ना। और फिर आसपास के लोग भी हमें सहयोग देते हैं, बोलते हैं हाँ नेचुरली गुस्सा आना था, तो हम कहते हैं हाँ राइट है ना। तो हम नेगेटिव इमोशंस को इंडोर्स करते गए, और जितना हम उनको इंडोर्स करते गए हम उसको क्रिएट करते गए, और जितना हम उसको क्रिएट करते गए हमारी ये जो शक्ति थी धीरे 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 घटती जाती है, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट। अब हम कहते हैं ना इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट के लिए पहले मन इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। निराधार, निराधार मतलब किसी पर आधार नहीं है हमारी मन की स्थिति का। हमारी मन की स्थिति हमारी अपनी चॉइस है, हमारी हर सोच हमारी अपनी चॉइस है। सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, हमारी सोच हमारी चॉइस है, हमारा बात करने का तरीका हमारी चॉइस है। ये निराधार है, ये आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर मतलब आत्मा पहले सिर्फ खुद पर निर्भर है, किसी और पर निर्भर नहीं है अपनी सोच बोल व्यवहार के लिए। दिस इज सेल्फ इंडिपेंडेंस, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर सिर्फ बाहर की चीजों में नहीं होता, आत्मनिर्भर सबसे पहले यहाँ है कि आत्मा खुद की मालिक है। पहले भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इस समय ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अपने इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना है। इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना है, और हमारे मन की स्थिति का असर हमारे बॉडी पर पड़ता है। तो अगर हमारा माइंड ठीक नहीं, भले हम बाहर से सारा काम कर रहे हैं, हम एक भी दिन सेवा करने से रुके नहीं, लेकिन अगर हमारा माइंड हलचल में आ रहा है, थोड़ा सा भी डर लग रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है, तो यहाँ की वाइब्रेशंस हमारे शरीर को पहुंचते हैं, और फिर शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम पर उसका असर आता है। तो इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम का असर बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम पर आ रहा है। हमें इस समय शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा बनाना है, लेकिन साथ साथ माइंड का इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा बनाना है। तो एक छोटी सी प्रैक्टिस के मन का ध्यान रखने के लिए अपनी सोच को देखना शुरू करें कि ये बात आई, व्हाट एम आई थिंकिंग, मेरी सोच क्या चल रही है, इसके बारे में क्या सोचना है और कितना सोचना है। कल हम एक क्लास स्टडी कर रहे थे परमात्मा के महावाक्य, तो उसमें शिव बाबा ने कहा, परमात्मा ने, कि दो चीजें चेक करना अपने मन के लिए, ब्रेक कितनी जल्दी लगती है और टर्न कितनी जल्दी होता है। मतलब थॉट्स चल रहे हैं, कितनी देर चलना है, फुल स्टॉप लगाओ, ब्रेक लगनी चाहिए उसको, और टर्न करना आना चाहिए अपनी थॉट को। अगर ये दोनों चीजें की तब यहाँ की शक्ति बढ़ेगी। अगर हम कहें ब्रेक भी नहीं लग रही, मन सोचता ही जा रहा है, सोचता ही जा रहा है,
और समाधान की तरफ नहीं, समस्या के बारे में चिंतन कर रहा है, तो टर्न भी नहीं कर रहे। तो ये दोनों चीजें पकड़नी है, ब्रेक कितनी जल्दी लगानी है मन को, और टर्न कितनी जल्दी करना है। और उसके लिए पहली प्रैक्टिस कॉन्वर्सेशंस में करनी पड़ती है। कई बार हम एक ही बात बहुत बार बोलते हैं, लेकिन देखो ना, ऐसे है ना, आगे कैसे चलेगा ना, ये साल तो कैसा बीतेगा। ये एक एक लाइन इमोशनल और फिजिकल इम्यूनिटी का डिप्लीटर है, ये शक्ति को घटाता है, क्योंकि ये लो वाइब्रेशन कॉन्वर्सेशन है। तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे होंगे ना एक दूसरे से, तभी बोलना चाहिए, चलो बस कोई और बात करते हैं, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। तो दूसरे को भी टर्न कर लेना है कॉन्वर्सेशन के अंदर। ऐसे नहीं अब वो बोल रहा है तो हमें हाँ हाँ बोलते जाना है। तो परमात्मा कहते हैं अगर आप ऐसे हाँ हाँ बोलते जाएंगे तो सामने वाला और बोलता जाएगा और बोलता जाएगा, और जितना वो बोलेगा उतना उसका भी नुकसान होगा, सुनने वाले का भी नुकसान होगा, और वायुमंडल भी दूषित होगा। आपके यहाँ से देश के घर घर में दूध जा रहा है। अब दूध सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, लेकिन दूध एक वाइब्रेशन है, क्योंकि हर चीज जो हम खाते पीते हैं वो वाइब्रेशन है। और जैसी वाइब्रेशन होती है ना, तभी लोग उसी चीज के पास वापस जाते हैं। जैसे गंगा का पानी क्यों सभी मंगवाते हैं? गंगा के पानी में क्या है? उसमें एक वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन है वहां के सारा दिन गंगा तट पर जो पूजा पाठ हवन होता है। ऐसे ही दूध की एक वाइब्रेशन है। अब दूध देना बंद नहीं हुआ, लेकिन जो जो उस पूरे काम का हिस्सा है, स्टार्टिंग फ्रॉम गांव से, जहां से वो दूध निकल रहा है, आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है, पैक्ड हो रहा है, जितने लोग इस सब का हिस्सा हैं, और जो स्थान इस सब का हिस्सा है, वहां की वाइब्रेशंस उस दूध के साथ घर घर पहुंचेंगे। तो अब हमें अपने मन में एक थॉट क्रिएट करनी है कि हम घर घर में सिर्फ दूध नहीं पहुंचा रहे हैं, हम घर घर में अमृत पहुंचा रहे हैं। दूध शरीर को शक्ति देता है, उसकी एनर्जी को चेंज कर दिया, उसको अमृत बना दिया, तो वो मन और शरीर दोनों को शक्ति देगा। और अब इस समय सेवा मतलब मन और शरीर दोनों को शक्ति देनी है। तो उस दूध की वाइब्रेशन में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। उस दूध की वाइब्रेशन में सिर्फ शक्ति चाहिए, निश्चय चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए और निर्भयता चाहिए। तो जो जो वो उस दूध को पिएगा, एंड दिस इज 100%, इसका आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, जो जो उस दूध को पिएगा, वो दूध के पीने के बाद 2 दिन 3 दिन वो ही दूध पिएगा ना, उसके मन की स्थिति परिवर्तन होने लग जाएगी। हम सब मंदिर जाते हैं, अमृत लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो वो तो इतना सा अमृत मिलता है हमें, लेकिन वो इतना सा अमृत भी इतना वैल्यूएबल क्यों होता है? क्योंकि उस पानी में किसी ने परमात्मा को याद करके बहुत हाई एनर्जी वर्ड्स डाले हैं। तो फिर हम उसको ऐसे लेते हैं, फिर हम उसको ऐसे करते हैं, मतलब ऐसे नहीं धोते उसको, हम ऐसे करते हैं, मतलब वो वाइब्रेशन कहीं वेस्ट नहीं हो जाए, वो वाइब्रेशन इधर आना चाहिए। अब इतना सा पानी अगर अमृत बन सकता है, तो आपको तो पूरा पैकेट दूध देना है हर घर के अंदर, तो वो भी अमृत बन सकता है। तो उसके लिए पूरी फैक्ट्री, प्लांट, ऑफिस, हर एक का घर मंदिर जैसा वातावरण हो जाए, मस्जिद, गुरुद्वारे, आश्रम जैसा वातावरण हो जाए। और उसके लिए क्या करना होगा? सबका मन पावरफुल। तो हमारी जिम्मेवारी सिर्फ अपने मन का ध्यान नहीं है, हमारे मन से दूध का वाइब्रेशन बदलेगा, और दूध के वाइब्रेशन से देश का वाइब्रेशन बदलेगा। देश का मन अगर ठीक हो जाए तो इस परिस्थिति का सामना करना बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है। इसीलिए आपकी जिम्मेवारी दूध देने से कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है, क्योंकि आप सिर्फ शरीर को स्वास्थ्य नहीं, आप मन को शक्ति पहुंचाएंगे अपने प्लांट से, एंड यू विल बी एबल टू चेंज द माइंड ऑफ द होल कंट्री। इतनी ताकत होती है वाइब्रेशंस में दूध की। तो इसलिए सबसे पहली प्रैक्टिस आत्मनिर्भर, मतलब मेरे मन की स्थिति परिस्थिति पर डिपेंडेंट नहीं, चाहे कुछ भी आ जाए, सही सोचेंगे
और कम सोचेंगे। और अगर माइंड ऐसे ही चलता जा रहा है तो 1 मिनट साइलेंस में बैठकर परमात्मा को याद करके इसको फुल स्टॉप लगाएंगे। कोई बातों का सल्यूशन तुरंत मिलता है, कभी कभी कुछ बातों का सल्यूशन इमीडिएटली नहीं मिलता है, तो अपने माइंड को कहना है ओके, जो सही होगा वो हो जाएगा, तुम सोचना बंद करो। ये मन को डिसिप्लिन करना है। बोलो मेरे सोचने से दूध दूषित हो जाएगा यहाँ से जो घर घर जाने वाला है। इतनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर रखनी है। तो ब्रेक लगानी है और टर्न करना है। टर्न मतलब मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी एक अच्छी वाली थॉट, हाई वाइब्रेशन थॉट, उसको हम कहते हैं ज्ञान के आधार से थॉट। तो स्पिरिचुअलिटी हमें नॉलेज देती है और नॉलेज से हमारी हर थॉट और वर्ड चेंज हो जाता है। हम सब ने सुना है संकल्प से सिद्धि और संकल्प से सृष्टि। मतलब जो हम संकल्प सोच करते हैं वो मैनिफेस्ट होता है, वो सिद्ध हो जाता है। और जो हम संकल्प सोचते हैं उससे हमारी सृष्टि बनती है। सृष्टि मतलब हमारी दुनिया। हर घर की एक अलग अलग वाइब्रेशन होती है, हर ऑफिस की एक अलग अलग वाइब्रेशन होती है, डिपेंडिंग ऑन वहां के लोगों की मन की स्थिति। तो संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सृष्टि। तो इस समय की परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए सही संकल्प। सिर्फ वो संकल्प करें जो हम चाहते हैं कि हो। अगर आपने शुरू में ये संकल्प न किया होता कि हम एक भी दिन बंद नहीं करेंगे, एक भी मिनट बंद नहीं करेंगे, हम करेंगे, हम जुटेंगे, जो आपने संकल्प किया, एवरीथिंग हैपेंस इन द माइंड फर्स्ट। अगर उस समय आपने संकल्प किया होता कैसे कर सकते हैं, कौन आएगा ऐसे समय पर, कौन मानेगा, तो आपकी सिद्धि मतलब आपका भाग्य अलग हो जाता। आज आपके संकल्प से आपका भाग्य आपने इस डायरेक्शन में लाया है। तो सोच से हमारा भाग्य बनता है। तो हर थॉट, हर वर्ड ऐसा क्रिएट करेंगे जो हम चाहते हैं कि हो। कुछ भी ऐसा सोचना और बोलना नहीं है जो हम चाहते नहीं कि कल हमें वो भाग्य में दिखाई दे। So only think and speak that what we want to see in reality. सुबह सुबह हम सब मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, दुआएं भी देते हैं, ब्लेसिंग्स भी देते हैं। तो हमारी जो सुबह की बादशाह होती है, मन की सोच होती है, वो बहुत हाई एनर्जी वर्ड्स होती है, हर एक करता होगा। अब ये सुबह सुबह हाई एनर्जी वोकैबुलरी होती है, लेकिन सारा दिन में हमारी सोच फिर धीरे 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 थोड़ी डाउन हो जाती है। अब हमें क्या करना है, सुबह की जो हमारी सोच होगी, सुबह की जो हमारी भाषा होगी, वो ही भाषा को हमें सारा दिन मेंटेन करके रखना है। सारा दिन उसी भाषा को मेंटेन करके रखना है। सब याद करिएगा, जब हम स्कूल में थे और एग्जाम देने जाते थे, हाथ उठाकर दिखाना कौन कौन अपने मम्मी पापा से आशीर्वाद लेकर जाते थे, लेकर जाते थे ना। और कौन कौन अपनी मम्मी पापा को कहते थे आज प्रे करना, हाँ मेरा बहुत मुश्किल वाला एग्जाम है आज। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? आज भी बोलते हैं। कोई प्रोजेक्ट है, कोई इंटरव्यू है, कोई प्रेजेंटेशन है, हम कहते हैं दुआ करना मेरे लिए सब अच्छा हो जाए। अभी सोचते हैं एग्जाम हमने देना है, पढ़ाई हमने की है, इंटरव्यू हमने देना है, वो घर बैठ के प्रेयर करेंगे, वो घर बैठ के आशीर्वाद देंगे, तो हमारा एग्जाम कैसे ज्यादा अच्छा हो जाएगा? ये दोनों बातों का कनेक्शन कैसे बनता है? और जब हम एग्जाम अच्छा देकर आते थे ना, हम घर आके बोलते थे आपने आशीर्वाद दिया ना, आपने मेरे लिए प्रे किया ना, इसलिए मेरा एग्जाम ठीक हो गया। हम नहीं बोलते थे मैंने इतनी अच्छी मेहनत की ना इसलिए हुआ, हम कहते थे आपने। तो हम अपने माता पिता को, हम अपने टीचर्स को हमेशा कहते थे कि आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में सफलता आई है। तो ये आशीर्वाद क्या है और ये प्रेयर और मेडिटेशन क्या है जिस पर हमने अपनी सारी सफलता डेडिकेट कर दी? ये है हाई एनर्जी वर्ड्स। अब वो घर में प्रे और करते थे, हम स्कूल में एग्जाम देते थे, लेकिन उनकी प्रेयर, उनकी वो पूजा, मेडिटेशन और आशीर्वाद की वाइब्रेशंस हमारे मन की स्थिति तक पहुंचता था और हमारी मन की स्थिति ठीक हो जाती थी।
और जब हमारी मन की स्थिति ठीक हो जाती थी, हम परिस्थिति का सामना कर लेते थे, हमें सफलता मिल जाती थी। हम सब ने सुना है, कभी कोई गांव में बारिश नहीं आती थी तो सभी लोग मिलकर पूजा करते थे, हवन करते थे, बारिश आ जाती थी। तो ये कोई मिरेकल थोड़ी है, ये तो सिंपल लॉजिक है कि जब सब पूजा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो सबके मन की वाइब्रेशन ऊपर हो जाएगी। जब वाइब्रेशन ऊंची हो जाएगी तो प्रकृति पर भी वाइब्रेशन का असर पड़ता है। परमात्मा कहते हैं आप प्रकृति जीत आत्मा हो, मतलब प्रकृति पर भी वाइब्रेशन का असर है। तो जब एक छोटे से एग्जाम के लिए हम ये करते थे, तो आज जो परिस्थिति आई है, क्या हमें उस समय इस इक्वेशन को नहीं यूज करना चाहिए कि सबकी प्रेयर, सबकी मेडिटेशन, सबकी दुआओं की भाषा इस परिस्थिति का सामना नहीं करने की शक्ति देगी हमें, लेकिन हमें उस भाषा को सारा दिन यूज करना है। सुबह की हमारी भाषा क्या होती है? सुबह की हमारी भाषा होती है, परमात्मा मेरे साथ है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है, सब अच्छा ही होना है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, मैं शांत हूँ, वो प्यार का सागर है, मैं उसका बच्चा हूँ। ये सारी वोकैबुलरी हमारी ऐसे वाली होती है। सारा दिन में हमारी भाषा थोड़ी सी बदल जाती है। हम कहते हैं कैसे होगा, कैसे करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल बात है, ऐसे कैसे, गुस्सा कैसे ना आए। तो they have become two different languages. So morning high vibration, throughout the day ordinary, and कभी कभी तो बिल्कुल डाउन। अब अगर हमें इस बड़ी सी परिस्थिति को खत्म करना है तो हमें वो सुबह वाली वाइब्रेशन पूरे दिन क्रिएट करनी होगी, which means हम एक नई भाषा शुरू करेंगे, a high vibration vocabulary। हम सब ने हाथ धोना, दूर बैठना और मास्क लगाना तो सीख लिया। अब सीखना है क्या सोचना और क्या बोलना। अगर वो भी सीख लिया तो देन मन एंड शरीर प्रोटेक्टेड, और जब मन एंड शरीर सही तो परिस्थिति तो कुछ भी नहीं कर सकती है। तो सोचना सही। तो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस, लेकिन इनको हम आज से ही करना शुरू कर देंगे। और अगर इन सारे चेंजेस को हम आज से विधि पूर्वक करेंगे तो निश्चित एक हफ्ते के अंदर आपका सोचने का और बात करने का तरीका बदल जाएगा। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, ये एक भाषा है और इसको कोई साल नहीं लगते हैं, ये कुछ दिनों में हो जाती है। एक 2-3 साल का बच्चा भी एक पूरी लैंग्वेज सीख जाता है। हमें तो बस थोड़ी सी थॉट्स का भाषा सीखना है। तो सुबह छोटी छोटी बातें, सबसे पहली चीज सुबह का ध्यान रखना है। एक आदत जो पिछले कुछ सालों से बनी है, जिसकी वजह से आत्मा की शक्ति घटती है, वो है सुबह सुबह उठते ही अपने फोन को देख लेना। सुबह सुबह उठते ही अपने फोन को देख लेना। हाथ उठाइएगा, कौन कौन सुबह सुबह उठते ही अपने फोन को देखता है? उठा लो हाथ, सबके वीडियो दिख रहे हैं, हाथ उठा लो। हाँ, अब क्यों नहीं देखना चाहिए ये समझेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा करना। सुबह हमारा जो मन है एकदम पीसफुल होता है, क्योंकि उसको 6-7 घंटे का रेस्ट मिला होता है, और मन एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है। जो इस पे डालेंगे ना सुबह, जो वो मन उसको पूरा अब्सॉर्ब कर लेगा, पूरा चूस लेगा अच्छे से। इसलिए हमें सिखाया जाता था सुबह उठ के पढ़ो। सुबह उठ के पढ़ोगे तो बहुत इजीली सब कुछ अंदर चला जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सुबह उठते ही क्या पढ़ लेते हैं, आधी आंख खुले में भी हम फोन देखने लग जाते हैं। कई बार तो आधी रात को नींद खुले तब भी हम फोन देख लेते हैं। तो ये हमारे मन की स्थिति के लिए बहुत हानिकारक है। सुबह का 1 घंटा 1 आवर हमारे मन के इम्यूनिटी सिस्टम के लिए हमें रखना है, 1 आवर। एंड इसमें अब कोई अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अब ये टाइम की बात ही नहीं रही, अब ये प्रायोरिटी की बात आ गई है। अब ये प्रायोरिटी की बात आ गई है। चारों तरफ पूरे विश्व में यही बात चल रही है। इनफैक्ट कुछ आर्टिकल्स तो डॉक्टर्स की तरफ से विदेश से ऐसे आए हैं कि मेंटल हेल्थ विल बी द नेक्स्ट सुनामी व्हिच विल कम। इट्स अ सुनामी, इट्स एन एपिडेमिक।
और लीडरशिप क्वालिटी, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लोग डाल रहे हैं कि लीडरशिप क्वालिटी इस समय जो चाहिए होगी वो है इमोशनल रेजिलियंस। बाहर का स्किल, बाहर का टैलेंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा इमोशनल रेजिलियंस परिस्थितियों का सामना करने के लिए। तो सुबह का 1 घंटा आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए अब हमें कंपल्सरी अपने जीवन में डाल देना चाहिए। तो सुबह फर्स्ट आवर हम फोन नहीं उठाएंगे। थोड़े दिन लगेगा, 5 मिनट देख लो, 2 मिनट देख लो, वो जैसे डी एडिक्शन होता है ना, तो वो विड्रॉल सिम्टम थोड़े दिन आएगा, सिर्फ थोड़े दिन आएगा। थोड़े दिन के बाद आपको बहुत लाइट और बेटर फील होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हम 5 मिनट भी अगर फोन देखते हैं ना, 5 मिनट पे, तो हम दुनिया की बातों को अपने मन पर कंज्यूम कर देते हैं। सपोज मैंने 2 मिनट न्यूज देखा कि शहर में देश में क्या हुआ, फिर मैंने 2 मिनट अपनी ईमेल्स देखी जो तो के काम से रिलेटेड ईमेल्स हैं, फिर मैसेज देखे, फिर अगर और 2 मिनट मिल गए तो सोशल मीडिया भी देख लिया। तो 5-10 मिनट में पूरी दुनिया को हमने यहाँ कंज्यूम कर लिया। उसके बाद आत्मनिर्भर रहना ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, इमोशनली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंज्यूम दुनिया को कर लिया। अब दुनिया की जो इमोशन है वो ही मेरे माइंड पर आ जाएंगे, तो मेरी अपनी चॉइस ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स वो खत्म हो जाता है। और इसीलिए अगर आप समाज को चेक करें 20 इयर्स 30 इयर्स पहले, हम में से मेजोरिटी उसी जनरेशन में है कि जब हम स्कूल में थे तो हमारे पास इंटरनेट नहीं था, हमारे पास कंप्यूटर नहीं थे, हमारे पास फोन नहीं थे, हमारे पास टीवी भी नया नया आया था और उसमें भी वो 1 आधे 2 कोई सीरियल आते थे। तब हमारी इमोशनल हेल्थ अभी से कितनी ज्यादा बेटर थी, कितनी बेटर थी। स्ट्रेस कोई वर्ड नहीं था स्कूल में, स्ट्रेस सिर्फ साइंस में होता था कि स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस, ये फिजिक्स में था। हम स्कूल में नहीं बोलते थे आई एम स्ट्रेस्ड, योर स्ट्रेस्ड, ऐसी तो बात कभी नहीं करते थे। डिप्रेशन तो हमें पता ही नहीं था कि क्या होता है। आजकल के शहरों में स्कूल में डिप्रेशन भी है, वो लोग डिप्रेशन की बात स्कूल में करते हैं। ये सब 20 साल के अंदर समाज में परिवर्तन आया है। एंड द बिगेस्ट रीजन इज कंटेंट, मीडिया एंड सोशल मीडिया कंटेंट, क्योंकि कंटेंट खुराक है। मन की खुराक वो होती है जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं। तो अगर आप ये छोटा सा नियम अपने लिए बनाएंगे ना, ये सिर्फ आपको नहीं बेनिफिट करेगा, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट आपके बच्चों को होने वाला है, क्योंकि आप बच्चों के लिए भी धीरे धीरे फिर वो नियम बनाएंगे कि कितना कंटेंट अंदर भरना है। सो व्हाट वी वॉच, रीड, लिसन, जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं, वो यहाँ हम बनते हैं, वो यहाँ हम बनते हैं। तो सुबह का 1 घंटा हम क्या भरते हैं और रात को सोने से पहले 1 घंटा हम क्या भरते हैं, उससे हमारे मन की स्थिति बन जाएगी, उससे हमारा व्यक्तित्व बन जाएगा, उससे हमारे संस्कार बनेंगे और उसी से हमारा भाग्य बनेगा और उसी से हमारा संसार बनेगा। तो कंटेंट का डायरेक्ट कनेक्शन डेस्टिनी ऑफ द वर्ल्ड पर है, इतना उसका इम्पैक्ट है। तो सुबह का 1 घंटा, कौन कौन एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी है? 1 घंटा विदाउट फोन, रेडी? 1 आवर विदाउट फोन। अगर इमरजेंसी नहीं हो तो काम की ईमेल या मैसेजेस भी सुबह सुबह नहीं देखने चाहिए, बट वो तो आपके वर्क पे डिपेंड करता है, वो मुझे नहीं पता। बट आइडियली काम के मैसेजेस और ईमेल भी सुबह के 1 घंटे में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो माइंड काम के बारे में सोचना शुरू कर देता है। सुबह का 1 घंटा ज्ञान का अध्ययन होना चाहिए, विच मीन्स हाई एनर्जी वर्ड्स अंदर जाने चाहिए। दैट इज वेयर स्पिरिचुअल स्टडी का रोल आता है। ब्रह्मा कुमारीज में हम क्या करते हैं, आज लाखों लाखों परिवार हैं, सब घर पे रहते हैं, सब अपना काम पे जाते हैं रोज, लेकिन 1 घंटा सुबह वो स्पिरिचुअल स्टडी को देते हैं। 1 घंटा हम सेंटर जाते हैं, सुबह सुबह परमात्मा का ज्ञान भरते हैं 1 घंटा, उसके बाद 23 घंटा अपना काम करते हैं। लेकिन वो 1 घंटा सिर्फ सुबह का मन, शरीर, रिश्ते, काम, भाग्य सबको बदल देता है। वो सुबह का 1 घंटा
दैट इज द पावर ऑफ कंटेंट कंजम्पशन। तो 1 घंटा सुबह स्पिरिचुअल स्टडी, अभी तो सेंटर नहीं जा सकते, लेकिन आप अपने घर पे बैठकर ये कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो सुबह का 1 घंटा स्पिरिचुअल स्टडी एंड मेडिटेशन, ये आत्मा को पावरफुल बना देगा। सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट, मतलब आंख खुलते ही पहली थॉट परमात्मा को शुक्रिया करना। फर्स्ट थॉट में परमात्मा जरूर आना चाहिए, भगवान को शुक्रिया करना है फर्स्ट थॉट के अंदर। क्योंकि कहते हैं ना, सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था, मतलब सुबह सुबह की पहली थॉट क्या थी। अगर हमने ध्यान से फर्स्ट थॉट नहीं क्रिएट की तो हमारा माइंड शुरू हो जाता है, अभी ये करना है, ये करना है, आज ये करना है, कल ये हुआ, ये बाद में सोचेंगे। सुबह की फर्स्ट थॉट मन की फ्रीक्वेंसी को ऊपर लेकर जाना है। तो फर्स्ट थॉट परमात्मा का शुक्रिया, सेकंड थॉट अपने मन और शरीर का शुक्रिया कि ये दोनों परफेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों को रोज शुक्रिया करना। जो हमारी सेवा करे उसको दिन में एक बार थैंक यू तो जरूर बोलना चाहिए। तो हमारी सबसे अच्छी सेवा कौन करता है? हमारा मन और हमारा शरीर, ये दोनों ठीक, तभी हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मन और शरीर को शुक्रिया, परिवार को शुक्रिया, दिस इज ऑल इन द माइंड। परिवार को शुक्रिया, अपने कर्म स्थान को शुक्रिया, आप जिन जिन के साथ काम करते हैं उनको शुक्रिया, अपनी संस्थान का शुक्रिया। ये 4-5 थॉट्स शुक्रिया के सुबह सुबह करने चाहिए। जब हम फर्स्ट थॉट्स ऑफ द मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट करते हैं, शुक्रिया से स्टार्ट करते हैं, तो हम अपने मन को हायर वाइब्रेशन पर ट्यून कर देते हैं। इस समय बहुत कुछ है शिकायत करने के लिए, क्योंकि ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, ये भी बहुत है सारा कुछ शिकायत करने के लिए। लेकिन शिकायत करने से शक्ति घट जाती है, शक्ति घट जाती है। शुक्रिया करने से शक्ति बढ़ जाती है। तो सुबह सुबह शुक्रिया करेंगे तो सारा दिन में शिकायत नहीं करेगा मन, मन की एक्सेप्टेंस पावर बढ़ जाएगी, बिकॉज वी ट्यून्ड इट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रैटिट्यूड। ट्यूनिंग करनी है। फिर सेकंड चीज, सेकंड सेट ऑफ थॉट्स जो हमें सुबह सुबह करने हैं, वो है हमारी न्यू वोकैबुलरी। इसको हम कहते हैं श्रेष्ठ संकल्प, हाई वाइब्रेशन थॉट्स, जिसको हम अफर्मेशन भी कह सकते हैं। वो सोच जो हम चाहते हैं कि सिद्ध हो। इस समय की परिस्थिति अनुसार कुछ थॉट्स जो हमने क्रिएट किए हैं ज्ञान के आधार पर। फर्स्ट थॉट, आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ पावरफुल बीइंग, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। फर्स्ट थॉट। अब आई एम अ पावरफुल बीइंग मतलब मेरे मन की स्थिति, परिस्थिति और लोगों के व्यवहार से ऊपर है, ऊपर है। आई डोंट गेट अफेक्टेड, आई डोंट रिएक्ट, आई डोंट गेट डिस्टर्ब्ड, आई एम पावरफुल। सेकंड थॉट, आई एम अ पीसफुल बीइंग, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मतलब गुस्सा, इरिटेशन, ये आउट। ये नहीं बोलना आई वॉन्ट टू बी, आई शुड बी पीसफुल, आई एम अ पीसफुल बीइंग, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तीसरा, मैं निर्भय आत्मा हूं, आई एम अ फियरलेस बीइंग। ये क्यों करना है? ताकि हम यहाँ होंगे तो सारे देश और विश्व का जो डर है वो हमारे मन पर असर नहीं करना चाहिए। वाइब्रेशंस ऑफ द वर्ल्ड आर ऑफ फियर राइट नाउ। तो आई एम अ फियरलेस बीइंग, ये हमारी थर्ड थॉट है। फोर्थ थॉट, माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी एंड विल ऑलवेज बी, मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। किस किस को कभी ना कभी एक बार सही ये थॉट आई होगी कि कहीं मुझे ना हो जाए। किस किस को आई है कभी ये थॉट? हाथ उठाओ कि कहीं मुझे ना हो जाए। कभी आई है ना? कभी ना कभी आई जाती है। जब इतना उतना सुनते हैं ना इधर उधर से तो आ जाती है, लेकिन हमें उस थॉट को फिनिश करना है। तो उस थॉट को फिनिश करने के लिए हम ये वाला संकल्प डालते हैं, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा रहेगा। माई बॉडी इज हेल्दी एंड विल ऑलवेज बी। एक पेपर है
इस पे एक ब्लैक सर्कल है, हमें वो ब्लैक सर्कल खत्म करना है तो हमें 5 वाइट सर्कल्स ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो हमारे माइंड में ये एक नेगेटिव थॉट है, अगर सपोज मुझे हो गया तो हमें उसको फिनिश करने के लिए 5 टाइम्स अच्छे थॉट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। दैट इज आवर 4th थॉट। 5th थॉट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। God's power and blessings is a circle of protection around me। और इसको विजुअलाइज करना है कि व्हाइट लाइट का एक ऑरा है आपके चारों तरफ। आई एम प्रोटेक्टेड बाय गॉड्स पावर। 6th थॉट, इस सर्कल के अंदर कुछ भी एंटर नहीं कर सकता। इस सर्कल के अंदर कुछ भी एंटर नहीं कर सकता, which means कोई वायरस नहीं, लेकिन which also means कोई आसपास की वाइब्रेशन नहीं, किसी आसपास का व्यवहार नहीं मुझे हिलाएगा। इस सर्कल में कुछ भी एंटर नहीं कर सकता। दिस इज आवर 5th थॉट। 6th थॉट, परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे परिवार के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम यहाँ से ये थॉट खत्म हो जाए, मेरे परिवार को कुछ हो गया तो, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो आप परमात्मा को याद करके परमात्मा की शक्ति का सर्कल हर एक के अराउंड ड्रॉ कर दो। कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड। हर एक के अराउंड ड्रॉ करो। दिस विल कीप योर फैमिली सेफ एंड प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट थॉट, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच पूरे अमूल डेयरी के चारों तरफ है। You have to draw this in your mind. This is power of affirmation and visualization. संकल्प करना है और फिर उसका दृश्य बनाना है कि निराकार परमात्मा शिव बाबा है, निराकार परमात्मा से व्हाइट पावरफुल लाइट पूरी संस्थान के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। हर एक सुरक्षित है। We have to say that, everyone, we have to say it every day. हर एक सुरक्षित है और हमारा ये पूरा संस्थान ये सेफ है और हमेशा रहेगा। We know right now कि एक भी कुछ होता है उसका इम्प्लीकेशन बहुतों पर आता है, इसीलिए हमें पूरे संस्थान को एक एनर्जी फील्ड क्रिएट करनी है हाई। तो परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के चारों तरफ है, हर एक सेफ है। फिर परमात्मा की शक्तियों का कवच पूरी सृष्टि के चारों तरफ है। God's power and energy, circle of white light around the planet। मेरी दुनिया सेफ है। एंड लास्ट संकल्प जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल सब लोग स्टैटिस्टिक्स गिनते हैं एंड आगे के स्टैटिस्टिक्स भी प्रेडिक्ट करते हैं। वो उनका रोल है, वो जिनका रोल है उनको ही सिर्फ करना चाहिए। लेकिन हम सब भी स्टैटिस्टिक्स सुनते, पढ़ते, देखते जाते हैं ना, तो फिर हम उस स्टैटिस्टिक्स को बढ़ाने के निमित्त बन जाएंगे। कोई भी स्टैटिस्टिक्स किस आधार से होता है? प्रेजेंट वाइब्रेशन के आधार से स्टैटिस्टिक्स बनता है। अगर वाइब्रेशन चेंज हो गई, स्टैटिस्टिक्स चेंज हो जाएंगे, प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगी। प्रेडिक्ट कुछ किया होगा, रियलिटी कुछ और बनेगी अगर स्टैटिस्टिक्स चेंज हो गए। अभी भी हमें पता है पिछले महीने भारत देश के लिए जो स्टैटिस्टिक्स हुए थे वो बिल्कुल अलग थे और जो रियलिटी हुई है वो बिल्कुल अलग है। सो प्रेडिक्शन, स्टैटिस्टिक्स विल नॉट ऑलवेज टर्न आउट टू बी राइट। उसके लिए हमें मन और शरीर का ध्यान रखना है। तो हमारा लास्ट अफर्मेशन, वो चीज जो प्लैनेट पर आई थी वो खत्म हो चुकी है। इट्स फिनिश्ड, इट्स गॉन फॉरएवर, नेवर टू कम अगेन। हम ये नहीं कहेंगे कभी भी वो 6 महीना, अभी 1 साल, 2 साल, नो। हम कहेंगे वो खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, फॉर एवर, नेवर टू कम अगेन। हमारी वाइब्रेशंस का हमारे शरीर पर असर पड़ता है, हमारे वाइब्रेशंस का प्रकृति पर असर पड़ता है। तो क्या हमारे वाइब्रेशंस का इस चीज पर असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा।
हमें सिर्फ सही वाइब्रेशन डालनी है। अभी आप सब लोग एक रूम में 6-8 लोग ऐसे बैठे हैं ना राउंड टेबल के आसपास, अगर आप सिर्फ सब मिलके एक व्यक्ति के लिए ऐसी थॉट क्रिएट करना, जाए जाए अब वो उठ के जाए यहाँ से, इस कमरे से, इसको जाना चाहिए इस कमरे से, सब मिलकर अगर एक व्यक्ति को माइंड में टारगेट करो कि इसको जाना चाहिए, विद इन 5-10 मिनट्स वो व्यक्ति उठ के कहेगा अभी मेरे को बाहर जाना है। आप बोलोगे क्यों जा रहे हो, बैठो बैठो, कहेगा नहीं पता नहीं क्या हुआ, मुझे कोई बात याद आ गई, मुझे जाना है। क्योंकि सबने मिलकर थॉट क्रिएट किया, जाएगा जाएगा जाएगा, तो वो चला गया। दैट इज द पावर ऑफ वाइब्रेशंस। ये हम सब ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, अभी हमें इस एक्सपेरिमेंट को सिर्फ यूज करना है। तो 10 थॉट्स: पावरफुल बीइंग, पीसफुल बीइंग, fearless being, perfect healthy body, circle of protection, nothing can enter into the circle of protection around family, circle of protection around organization, circle of protection around planet, and that thing which had come on the planet is gone forever. 10 श्रेष्ठ संकल्प, पावरफुल थॉट्स हम सुबह उठ के क्रिएट करते हैं। और जब हम इनको क्रिएट कर रहे हैं, हम इनको साथ साथ विजुअलाइज भी करते हैं कि यहाँ पर सेंटर ऑफ द फोरहेड, वो टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट की तरह मैं आत्मा, पावरफुल। सारा दिन देखो कुछ भी बात आएगा, आई विल बी पावरफुल। एंड पावरफुल मीन्स मैं अपने थॉट्स को 1 सेकेंड में ब्रेक लगा सकता हूँ एंड मैं टर्न कर सकता हूँ सिचुएशन में। आई एम पावरफुल, पीसफुल, फियरलेस। इस सब को सुबह सुबह देखकर विजुअलाइज करें। इजी है? कौन कौन ये 10 थॉट्स कर सकता है? हाथ उठा लो एक बार। वेरी गुड, ये बहुत इजी है। अब ये 10 लाइंस है, हमें इस मन रूपी बच्चे को बोलनी सिखानी है। तो सिर्फ सुबह करने से नहीं होगा, हर 1 घंटे के बाद भी रुक कर 10 सेकेंड्स के लिए रुक कर हमें इसको फिर से रिपीट करना होगा। आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल, आई एम फियरलेस, अच्छे से फील करते हुए इसको रिपीट करना होगा, जिसको हम ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं। आप सबको पता होगा ब्रह्मा कुमारीज में हम हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए साइलेंट होकर बैठते हैं। ये 1 मिनट आफ्टर एवरी 1 आवर बहुत पावरफुल होता है। वो मन को ब्रेक लगाता है और मन को सही दिशा में सोचना सिखाता है। तो हर घंटे के बाद रुक कर इस 10 थॉट्स को रिपीट करिएगा। फिर रात को सोने से पहले का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को सोने से पहले भी 1 घंटा सोने से पहले हमें न्यूज़, मीडिया, सोशल मीडिया, कोई उस तरह के सीरियल जिसमें नेगेटिव वाइब्रेशन है, कोई मूवी, ये सब लास्ट 1 आवर में नहीं होना चाहिए। आखिरी 1 घंटा मन साइलेंट होना बहुत जरूरी है, तभी नींद अच्छी आएगी। हम सब सोते काफी हैं, लेकिन हम अच्छा नहीं सोते हैं। और अगर हम अच्छा नहीं सोएंगे तो मन और शरीर दोनों के लिए वो अच्छा नहीं होता है। और अच्छा सोना मतलब साइलेंट माइंड। हर न्यूज चैनल कहता है कि उनकी हाईएस्ट टीआरपी कब है? अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट। अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट, और यही दोनों टाइम है सिर्फ जब न्यूज देखना हमारे लिए हानिकारक है, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट। तो हमने कुछ चीजें ऑपोजिट की ना, उसी का हमारे पास रेपरकशन आया। तो माइंड की स्पीड को सोने से पहले स्लो डाउन करना पड़ता है, विच मीन्स नॉट अबाउट वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन भी नहीं होना चाहिए लास्ट आवर में। हमारे को काम कितने घंटे करना होता है ये ध्यान रखना है। जब तक हम मन को थोड़ा सा रेस्ट नहीं देंगे, वो मन सुबह एनर्जाइज्ड और फ्रेश नहीं आएगा। तो 8 से 8 मन को काम करने दें, लेकिन शाम के 8 से सुबह से 8 इस मन को काम से दूर रखें, अनलेस देयर इज अ क्राइसिस। सिर्फ जब कोई इमरजेंसी है, नॉट ऑन अ डेली बेसिस, नहीं तो ये मन थक जाता है। तो लास्ट 1 आवर, लास्ट 1 आवर वर्क कम्युनिकेशन भी नहीं होना चाहिए, विच मीन्स नो फोन, नो ईमेल्स, नो मैसेजेस। हम लोग कई ऑर्गेनाइजेशंस में एज एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ये बना दिया है कि आफ्टर 8 o'clock no sending email to anybody, no sending message to anybody for work related, and no calling up anybody unless it's an emergency. नहीं करना।
उससे जो ह्यूमन रिसोर्सेज अगले दिन ऑफिस आएगा ना, वो ज्यादा रिफ्रेश्ड आएगा। एंड फिर लास्ट 15 मिनट सोने से पहले फिर बहुत प्योर कंटेंट अंदर जाना जरूरी है, क्योंकि लास्ट जो अंदर जाएगा ना, लास्ट वो 6 घंटा वही प्रोसेस होगा अंदर। तो अगर प्योर कंटेंट, स्पिरिचुअल कंटेंट रात को सोने से पहले अंदर डाला, नींद अच्छी आती है, मन के वो थॉट्स और पावरफुल हो जाते हैं और शरीर को हीलिंग एनर्जी मिलती है 6 घंटा। अगर हमने सोने से पहले कोई ईमेल देख ली हो, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे कर दिया, अब कल इसको ठीक करना पड़ेगा जाके, ठीक तो कल करना है जाके, लेकिन रात को 10 बजे सोने से पहले वो पढ़ लिया, अब उसके बाद 6 घंटा वो मन वो नींद में टेंशन क्रिएट करेगा और वो टेंशन के वाइब्रेशन हमारे शरीर को भी पहुंचते हैं। तो फिर हीलिंग क्यों होगी? क्यों इतना ज्यादा डायबिटीज और ये सब बढ़ गया है? बिकॉज नींद में भी हीलिंग नहीं हो रही है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ लाइफस्टाइल डिजीज। और एक छोटी सी चीज जो हमें ध्यान रखनी है, हमारा सोने का समय, सोने का समय, स्लीप साइकिल राइट होना चाहिए। तो बेस्ट टाइम टू स्लीप इज 10 to 4। 10 बजे का समय बहुत सही समय है सोने का। 10 to 4 हमारे माइंड और बॉडी की एनर्जाइजिंग बेस्ट होती है। अगर हम 10 की जगह 11 सोते हैं, हमने 1 घंटा गवा दिया। 12 बजे सोते हैं, हमने 2 घंटे गवा दिए। तो हर चीज का सही समय होता है। तो 10 o'clock अगर हम सोते हैं और अगर आप करना शुरू करेंगे तो आपके बच्चे करना शुरू करेंगे। ये सब कुछ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो वो तो 12-1 बजे तक आजकल सोते हैं और फिर सुबह लेट उठते हैं, सब ऊपर नीचे साइकिल कर दिया है। तो इसलिए 10 to 4 इज अ वेरी गुड टाइम टू स्लीप। एंड लास्ट चीज, तो ये 10 थॉट्स हमने सुबह किए, एवरी आवर किए, रात को सोने से पहले आप जस्ट सोने से पहले वापस वो 10 थॉट्स क्रिएट करके परमात्मा को अपने सारे दिन की बात बता के सरेंडर करके मन को हल्का करके फिर सोना है। इवन इफ देयर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम टुमारो, रात को प्रॉब्लम लेके सोना नहीं है। सोने से पहले परमात्मा को बता के कि ये प्रॉब्लम है, मैं कल सुबह बैठूंगा आपसे बात करने के लिए, आप मुझे तब बता देना इसके लिए क्या करना है, फिर हम कल सुबह इसको कर लेंगे। लेकिन लाइट होकर ऊपर सौंप कर सोएंगे तो अगले दिन सुबह मन के पास बहुत शक्ति होगी उस परिस्थिति का सामना करने के लिए। और लास्ट चीज, जब हम खाना खाते हैं, हम सब तो वेजिटेरियन ही खाना खा रहे हैं और अब तो खाना ही सिर्फ वेजिटेरियन चाहिए। गुजरात में तो वैसे भी आप मेजोरिटी सब सात्विक ही भोजन खाते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं खाता है या नहीं खा रहा है तो वो ध्यान रखे कि इस समय हमारे खाने में डर वाले वाइब्रेशंस का खाना हम इस समय नहीं खा सकते हैं, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। नॉन वेजिटेरियन फूड में तो वाइब्रेशंस ही फियर और एंजाइटी के होते हैं, तो वो तो हम ले ही नहीं सकते, आने वाले समय में भी नहीं लेना चाहिए। अब सात्विक भोजन के भी वाइब्रेशंस को हमें चेंज करना है, क्योंकि शहर के पानी में भी फियर है, अभी शहर के सब्जी फ्रूट में भी फियर है। देने वाला डर रहा है, खरीदने वाला डर के खरीद रहा है, तो बहुत सारी फियर की एंजाइटी है। तो जैसे हम चीजों को धोते हैं, ऐसे ही हमें चीजों को एनर्जाइज भी करना होता है। तो रसोई घर में आप सब अपने घर में ये बताना, और लेकिन आपके यहाँ तो मुझे लगता है आपकी फैक्ट्री में भी होना चाहिए, स्पेशली जहाँ मिल्क प्रोसेस हो रहा है, पैक हो रहा है, wherever the milk is there, you should have high energy environment there. उसके लिए एक सिंपल तरीका, रसोई घर में परमात्मा के याद के गीत बजने चाहिए पूरा दिन, which means spiritual songs, भजन, प्रेयर, मंत्र, जो अच्छा लगे, जो अच्छा लगे, लेकिन हाई एनर्जी वर्ड्स रसोई घर में चलने चाहिए। मंदिर गुरुद्वारे में प्रसाद कैसे बनता है? हाई एनर्जी वर्ड्स चलते हैं, और वो हाई एनर्जी वर्ड्स चलते हैं और वो एक एक शब्द खाने में चला जाता है, और जब वो लोग खाते हैं तो उनके मन को शक्ति मिलती है। तो इसी तरह पूरा जो प्रोसेस प्लांट है, जहां मिल्क प्रोसेस होके पैक हो रहा है, अगर आप वहां पे हाई एनर्जी वर्ड्स प्ले करें, अगर आपको स्पिरिचुअल सॉन्ग्स चाहिए
तो योगिनी दीदी आपको ईमेल पे 200-300 गाने तो अभी भेज देंगे, 10 मिनट के अंदर रेडी। वो गाने प्ले करिए, या आपके वहां के लोगों को जो गाने पसंद आए उनको, लेकिन कुछ तो प्ले करना चाहिए हर जगह, जहां से परमात्मा के, शांति के, दुआओं के, प्यार के ये वाले शब्द उस दूध के कण कण में अब्सॉर्ब हो जाए। अगर आप इंटरनेट पर जाकर चेक करें वाटर मेमोरी, तो बहुत साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे हर चीज शब्दों को अब्सॉर्ब करती है। हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चलता है जिसको योगिक खेती कहते हैं, कि खेतों में जाकर मेडिटेशन करते हैं, और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज इंडिया की उसको स्टडी कर रही हैं कि जिन खेतों में जाकर मेडिटेशन करते हैं वहां पेस्टिसाइड और वो सारी चीजें तो अलग नहीं है, लेकिन उसका जो प्रोड्यूस निकलता है, उसका साइज, उसका कलर, उसका टेस्ट इज डिफरेंट। किसी अशांत मन को बोलो खाना बनाए, आपको खाने का टेस्ट अलग आ जाएगा, खाने का मन नहीं करेगा। एक्चुअली अगर आप चाहते हैं ना कि सब लोग सिर्फ अमूल का दूध और दही लें और दूसरा कोई भी ब्रांड ना खरीदे, तो उसमें प्रसाद वाली वाइब्रेशन डाल दो, क्योंकि जो एक बार उसको लेना शुरू करता है ना, वो दूसरी चीज फिर नहीं ले सकता है उसके बाद, क्योंकि उसको एक अलग फीलिंग आती है वो चीज लेके, क्योंकि उसको यहाँ बहुत लाइट फील होता है। तो इसलिए अपने प्रोसेस प्लांट पे, अपने किचन में, और अगर ऑफिस के अंदर भी कोई किचन या पैंट्री, हर जगह जहाँ खाने पानी की चीज है वहां परमात्मा के याद के गीत बजने दीजिए। पूरा दिन 24 घंटे बजना चाहिए। The water vibration will change, the food vibration will change, the milk vibration will change. फिर खाना खाने से पहले फोन और टीवी खाने के साथ कभी नहीं होना चाहिए। ये घर का नियम होना चाहिए, ये बच्चों का नियम होना चाहिए। नो फोन एंड टीवी while eating, क्योंकि जो टीवी या फोन पे चल रहा होगा वो खाने की वाइब्रेशन बन जाएगा, फिर जैसा अन्न वैसा मन बन जाएगा। फिर परमात्मा को याद करके खाना शुरू करें। हमें तो बचपन से सिखाया था सबको, अब अगर हम नहीं कर रहे तो अब करना तो बहुत जरूरी है। और फिर वो 10 थॉट्स को आप खाना खाने से पहले डाल दीजिए उसमें। तो वो 10 थॉट्स जब खाने के वाइब्रेशन में चला जाएगा, तो फिर वो 10 थॉट्स आपकी नॉर्मल वे ऑफ थिंकिंग बन जाएगा, तो आपकी वो जो दूसरी वाली थॉट्स है वो फिनिश हो जाएंगी। तो खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले, दूध चाय कॉफी पीने से पहले, कुछ भी जो मुख में जाता है उससे पहले हम ये सेम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। संकल्प से सिद्धि होती है। तो जो संकल्प आप डालना चाहें वो आप अपने वो 10 थॉट्स में फिट कर लीजिए, लेकिन सेम थॉट्स सुबह, हर 1 घंटे के बाद, खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले, रात को सोने से पहले। अगर सेम थॉट्स 15-20 बार दिन में हो गए तो 8 दिन के अंदर अंदर, पक्की बात है, 8 दिन के अंदर अंदर आपके यहाँ पे एक शिफ्ट आएगा, यहाँ पे एक शिफ्ट आएगा और आपकी वाइब्रेशन ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। आपका डर, आपकी चिंता, आपकी ये थॉट कि कहीं मुझे ना हो जाए, ये ऐसे ही डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि आपने उस सर्कल को दूसरे सर्कल से रिपीट कर दिया है, ओवरराइट कर दिया है। सो अब कई लोगों को लगता है इतनी बार कौन ये थॉट क्रिएट करेगा, लेकिन अगर हम इतनी बार हाथ धो सकते हैं, अगर हम इतनी बार मास्क लगा सकते हैं, तो फिर हम इतनी बार सोच भी सकते हैं। क्योंकि कितनी भी प्रोटेक्शन हम बाहर कर लें, अगर हमने मन की स्थिति का साथ में ध्यान नहीं रखा तो हमारी प्रोटेक्शन इनकम्प्लीट है, अधूरी है। हमें पूरी प्रोटेक्शन करनी है, मन, शरीर, परिवार, लोगों की, संस्थान की और फिर देश की, सबकी प्रोटेक्शन करनी है। तो ये 10 थॉट्स आपके पास हैं, हम इसको आपको लिखकर भी भेज सकते हैं, दीपा बहन भेजेंगी, लेकिन इसमें आप अपनी कोई थॉट भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, करना बार बार है दिन के अंदर, सिर्फ सुबह एक बार करने से नहीं होगा। और खाने पीने से पहले तो जरूर करना है, क्योंकि खाने पीने के अंदर इस समय वाइब्रेशन ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। शहर के पानी में इस समय डर और चिंता की वाइब्रेशन है,
इसीलिए हम ठीक होते हैं, फिर हम कुछ खा पी लेते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद हमारे पास डर की थॉट फिर से आ जाती है, चिंता की थॉट फिर से आ जाती है। वो खाने पीने से आई है। तो इसलिए जब आप खुद करेंगे और आपको उसका रिजल्ट एक्सपीरियंस होगा, फिर आप उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेंगे, फिर तो आप देश के लिए बहुत बड़ी सेवा कर देंगे। क्योंकि हम हर एक को बता रहे हैं कि अपने खाने में करो, पानी में करो, लेकिन अगर आप कर देंगे तो घर घर तक वो हाई एनर्जी वाइब्रेशंस वाला दूध सीधा पहुंच जाएगा, तो हर घर में हर मन को सुकून मिलेगा। तो आज से सिर्फ दूध नहीं भेजना है, परमात्मा की याद का अमृत भेजना है हर जगह। आप उसका वर्ड ही चेंज कर दीजिए, आप बोलो हम अमृत भेजते हैं। हर शब्द की भी एक एनर्जी होती है। अमृत बोलने से ही यू आर एनर्जाइजिंग द मिल्क। हम अमृत हर जगह घर भेजते हैं। हम सिर्फ शरीर को सेहत के लिए नहीं, हम मन को सुकून देने के लिए अमृत घर भेजते हैं। दिस इज अमृत, दिस इज गोल्ड फॉर द माइंड एंड फॉर द बॉडी। और जैसे ही हम ऐसा सोचेंगे और बोलेंगे, तो दूसरी वाली थॉट्स तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। और कुछ एक महीनों के लिए न्यूज देखे ही ना तो बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। हमें जानने की जरूरत नहीं है दूसरे देशों में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, हमें सिर्फ उधर की बातें इस समय जाननी है और उनका ध्यान रखना है। जब हर एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सिर्फ ध्यान रखेगा, तो देश की वाइब्रेशन और फिर सृष्टि की वाइब्रेशन बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी और स्टैटिस्टिक्स बदल जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स देख के हमें डरना नहीं है, स्टैटिस्टिक्स को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, दैट इज आवर चॉइस। So spiritual power and meditation is going to play a very, very important role right now. दीपा बहन आपके पास बहुत सालों से आ रही हैं और बहुत सालों से मुझे भी कह रही थी साथ में चलो इकट्ठे चलते हैं एक बार। तो जब ये लॉकडाउन पूरा होगा तो वो सब हम करेंगे। आप सब भी सेंटर आइएगा, मेडिटेशन सीखिएगा। लेकिन क्योंकि अभी सेंटर नहीं आ सकते हैं, तो अगर आपको ठीक लगे और जो करना चाहे, तो फिर दीपा बहन सुबह या शाम जो टाइम आपको ठीक लगे, तो 6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए 1 घंटे का टाइम दीजिए। तो दीपा बहन पूरा ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स आपको करा सकती हैं, ऑनलाइन पे करा देंगे इसी तरह जूम पर। तो जो करना चाहे वो दीपा बहन अगर एक ग्रुप बनाए और आप सब नंबर्स उनको दे, तो वो सबको वो ऑनलाइन कोर्स सुबह या शाम जो टाइम आप बताएं, बट 1 घंटा चाहिए फॉर 1 वीक। 1 वीक 1 आवर एवरी डे। तो आत्मा कैसे अपने गुणों को इमर्ज करे, परमात्मा के साथ कैसे कनेक्शन जोड़े, परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर कैसे भरे, वो हीलिंग एनर्जी बॉडी को कैसे दे, और कैसे इस समय को हमें क्रॉस करना है मेडिटेशन से। तो वो मेडिटेशन कोर्स जो सेंटर पे कराया जाता है वैसे हमेशा, लेकिन इस समय दीपा बहन ऑनलाइन सबके लिए करा सकती हैं। So I think it will be good to make the most of this time and do that 1 week course online also. Thank you so much for everything. Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti. सत धन्यवाद सिस्टर शिवानी, हमें प्रेरणादायक व्यक्तित्व से भरपूर करने के लिए। मेरा नाम रुणाल देसाई है। हमारी ही सबसे पहले अमूल परिवार की ओर से ये वेबिनार आयोजित करने के लिए बात हुई थी। मैं अमूल में ऐसे ही सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कॉन्फ्रेंस आयोजित करता हूं। तो उसी के संदर्भ में 2018 से हमारे मैनेजमेंट ने आपको आनंद में बुला के ऐसा ही प्रोग्राम आयोजित करने के लिए सूचन किया था। हमारे गुजरात में एक कहावत है कि फूल नहीं तो फुल्ली पाकड़ी। ऐसी हमारे सामने वेबिनार के थ्रू गुड़गांव से उपस्थित हुए, उसके लिए हम सब आपके दिल से आभारी है। करीबन 800 लोगों ने आज ये हमारा वेबिनार लाइव देखा है। हमें आशा है कि इसी तरह हम आध्यात्मिक मार्ग पर और आगे चलते रहेंगे, एक खुशनुमा जिंदगी हमारी भी बनाएंगे और खुशनुमा समाज बनाने के लिए निमित्त भी बनेंगे। मैं शिवानी दीदी को आनंद में उपस्थित होकर
ज्ञान का लाभ देने के लिए अमूल परिवार की ओर से आमंत्रित करता हूं। मेरा अनुरोध है कि आप अवश्य पधारें। जरूर। मैं बीके योगिनी बहन, दीपा बहन, गीता बहन, साहिल भाई, उन सब का अमूल की परिवार से शुक्रिया अदा प्रदान करता हूं, जिनकी वजह से आज ये वेबिनार आयोजित हुआ। मैं अमूल परिवार के सभी सदस्यों के धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतने लंबे समय और शांति से दीदी को सुना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, I also thankful our managing director for giving us an opportunity for conducting this webinar. खूब खूब आभार। ओम शांति। Now I request Ravi bhai to stop the broadcast YouTube, and now we will have a question and answers with our senior employees, managers and other employees.